अभी भी रिजल्ट आने के इतने दिन बाद भी अभी भी लोगों को हैरत है कि यूपी में कैसा जनादेश आया। और आज हम लोग कोलकाता में बैठे हैं और लखनऊ में भाजपा के टॉप लीडर्स 3000 लोग बैठे हैं कि हम क्यों हार गए लेकिन वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगली बार हम लोग हारेंगे। तो अपने हार का वो कारण नहीं ढूंढना चाहते। मैं बताऊं कि जो वायर की तरफ हमारी वायर के एडिटर भी थे, मैं उनके साथ था, एक गांव में गए थे। तो वहाँ पर एक बंदे ने पूछा कि आप किससे हैं? तो हमने कहा वायर से। अरे वो तो वही जिसमें करण थापर ने कल प्रशांत किशोर को पानी पिला दिया तो और उसके बाद वो हम लोग से फोटो खिंचाने लगा। तो अचानक हम लोगों को लगा कि हम लोग भी कुछ महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो जनता ने अपना मीडिया भी पहचान लिया है और इनको मान लिया है कि ये है, इनको देखना नहीं है, वो कुछ भी चाहते हैं। इसीलिए इतना आप समझें कि आप उसमें सोने का हर्फ लगा के छाप दें कुछ भी मोदी के बारे में या इनके बारे में जो भी करें, उसका कोई असर आम लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। ये 3 बात बहुत बड़ी वैल्यू है कि मतलब आप किसी तरह का भेद न मानिए, जात का भेद नहीं, मनुष्य समाज के भी भेद नहीं मानते। ये बुद्ध भी कहते थे, फिर उसके बाद गोरखनाथ भी कह रहे हैं, और फिर उसके बाद कबीर भी। और हम लोग उस इलाके के वारिस हैं क्योंकि तीनों वहीं थे। बुद्ध का जन्म भी हमारे लुम्बिनी में हुआ है, हमारे गोरखपुर से 80 किलोमीटर पर है। उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ, वहाँ भी 60 किलोमीटर दूर है। मगहर जहाँ कबीर का निर्माण हुआ वो 40 किलोमीटर है गोरखपुर से। अब गोरखपुर खुद गोरखनाथ की धरती है। लेकिन वहाँ कैसे, जहाँ पर इतने बड़े संत रहे जिन्होंने इतनी बड़ी बातें कही, वहाँ पर किस तरह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स ग्रो कर गई। I would like to invite our friend and senior journalist who's come all the way from Gorakhpur, Manoj Singh. In 2017 was the last time that Manoj ji had come to one of our programs, because that was incidentally that was the year that Gauri was assassinated, but that was also the year when Mr. Ajay Singh Bisht, who is also known as Yogi Adityanath, he had become the Chief Minister of Uttar Pradesh. And I think he had become the Chief Minister in the month of March 2017. And Manoj ji was here in one of the People's Film Collective programs in April 2017, because we had invited him to explain to us what was happening in Gorakhpur. And मुझे ये याद है कि मनोज जी ने, I will try with my bad Hindi, but I think it goes across. मनोज जी ने हमको एक बहुत ही comprehensive history बताया था, जो हम आज भी थोड़ा सा दोहराएंगे later on after he has finished his main presentation. लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली आज के शाम तो है एकदम फियरलेस पत्रकारिता के नाम, इसीलिए हमने गौरी के साथ शुरू किया। और गौरी जैसी बहुत सारे जर्नलिस्ट अभी भी भारत के छोटे कस्बों, ग्राम, ये सब जगह पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको न्यूज़ मिलता है कि सचमुच में क्या हो रहा है। और मनोज जी उन्हीं में से एक है। उनका परिचय हम थोड़ा दे देते हैं। It's my pleasure to introduce Manoj ji. So he used to work with mainstream Hindi newspapers like Hindustan and Sahara till 2014. After 2014, he became a fully independent journalist, and he launched and he started working with Gorakhpur News Line, which is a non-mainstream and non-funded news portal. And it has its own website since then, it's still running. So apart from Gorakhpur News Line, working with it, Manoj ji also did a lot of freelance work. He also regularly, his columns come out in the Wire, often in Hindi and often translated into English. Apart from that, he is also a cultural activist, and as many of you know, last time we introduced him, his other identity as a cultural activist. So he's been the founder member of Gorakhpur Film Society, which has been running the Gorakhpur Film Festival of Cinema of Resistance from 2006 to 2019. And after that it stopped because of COVID, but they are hoping to revive it again maybe later this year.
And he is also associated with the Jan Sanskriti Manch, the platform of cultural activists. He is part of the UP chapter of it. And he is associated with a very interesting festival called Lok Rang, which, unlike we are having this in the city, the Lok Rang festival annually it happens in the village, open air festival of writers and all other kinds of cultural activists who are writing actually for the people and living in their midst. So he is associated with so many things like this, and as relevant to his talk today here, he in this last election he has travelled himself extensively to more than 15 Lok Sabha constituencies in Uttar Pradesh, and at the time when the exit polls were really scaring us, you remember all of us were very scared, right? 400 par and all that. So exit polls giving all their own verdicts. But much before that, Manoj ji and many other people, whenever we used to call them what is happening, they used to give us with full confidence, they used to say, just don't trust the polls and just don't trust the big media. And we used to wonder, is this confidence real or are they faking it because they want to give us some confidence? Is it real? But they had so much confidence because they were actually watching on the ground, unlike sitting in TV studios and just going by word of mouth. So I would like to hand it over to Manoj ji, and before that I'd also like to say that in his career as a journalist, he has, there are few things that he's focused deeply on, one of which is ground level election reporting. He's done it in Nepal elections of 2008, Bihar elections of 2020 and Lok Sabha 2024 of course. And he's also been writing a lot about ecology of rivers, people who live with the rivers and by their livelihoods depend on the rivers. He's also been doing this ecological journalism on the side. So with that introduction, मैं मनोज जी को invite करूँगी कि आज आप दो मुद्दे की फोकस में रखते हुए, दो मुद्दे को फोकस में रखते हुए आप अपनी बात रखें। एक मुद्दा हमारे सामने ये है कि यूपी में बदल क्या हो रही है, जमीनी हकीकत ऑफ यूपी। दूसरा मुद्दा ये है कि पत्रकारिता का बदल 2014 या आप उससे भी पहले शुरू कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, जो बदल हुई है पत्रकारिता में, जो चैलेंजेस आपके सामने अभी इस वक्त है और आप कैसे उनको झेल रहे हैं। और अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ तो हमको देखने मिला कि बहुत सारे पत्रकार उभार भी है ग्राउंड से, जिनको जो निकाले गए थे डिफरेंट हाउसेस से, वो अभी अपने जो कुछ संगठित करके छोटे रूप में वो जमीनी पत्रकार फिर से अपनी वॉइस उनको मिल रहा है डिजिटल माध्यम के जरिए से, उनके बारे में भी बताइए। और आगे के दिन में पत्रकारिता के लिए क्या, ये दो मुद्दा जो यूपी और पत्रकारिता, इनको रखते हुए मन में आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हमारे लंबे कॉन्वर्सेशन आपके साथ है। मैं सबसे पहले यूपी चुनाव के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्योंकि अभी भी रिजल्ट आने के इतने दिन बाद भी अभी भी लोगों को हैरत है कि यूपी में कैसा जनादेश आया। और आज हम लोग कोलकाता में बैठे हैं और लखनऊ में भाजपा के टॉप लीडर्स 3000 लोग बैठे हैं कि हम क्यों हार गए लेकिन वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगली बार हम लोग हारेंगे, तो अपने हार का वो कारण नहीं ढूंढना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी था यूपी खास तौर पर, और हम लोग को तो लग ही रहा था कि 24 में जो भी चुनाव होगा वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ही, या तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आएंगे। और जनवरी में जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ और जिस तरह से भव्यता के साथ हुआ, और उससे तो लगा कि कम से कम यूपी में तो कोई लड़ाई बनेगी ही नहीं, इतना माहौल क्रिएट किया गया था। और आपको बताएं कि मुझे हैरत हुई कि लेकिन कुछ ऐसा ग्राउंड में था जो अयोध्या में जो हो रहा था और टीवी चैनलों अखबारों में जिस तरह से चल रहा था उससे अलग था, जो देखने की जरूरत थी। क्योंकि जिस दिन ये अयोध्या में हो रहा था तो मैं बाद में फरवरी में ही मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दिया था। मैंने 3 पेज में इलेक्शन को बांटा कि इलेक्शन के पहले थोड़ा एक राउंड लिया जाए, लोगों का क्या सोचना है, फिर चुनाव के दौरान जाएंगे। तो मेरे ही जिस घर में मैं रहता हूँ वो मर्चेंट नेवी में है, और वो
उनका जहाज यूरोप के किसी देश में था, लेकिन उस जहाज में भी सेलिब्रेशन हुआ उस दिन, जिस दिन राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहाँ से उन्होंने जब वो लौट के आए थे तो मुझसे बताया कि हम लोगों ने केक काटा था और काफ़ी जश्न मनाया था। फिर मैं फरवरी के लास्ट में एक ऐसे गांव में गया जो कुशीनगर, नेपाल और यूपी का भी बॉर्डर है, जहाँ पर आप 8 महीने जा नहीं सकते क्योंकि वो नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बिहार है, फिर यूपी है। और वहाँ के लोग लंबे अरसे से एक पुल की डिमांड कर रहे थे कि एक पुल बन जाए तो हम लोग आने जाने के लिए सहूलियत हो जाएगी। तो उस गांव में मेरे पास एक खबर आई कि उस गांव के लोगों ने, ये जनवरी में जब ये राम मंदिर का हो गया तो 1 महीने, ठीक 1 महीने बाद, तो वहाँ पे लोगों ने बैनर लगाया कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे, और 50,000 वोटर थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि गांव में जाना चाहिए। तो काफ़ी रेत में चलते हुए, पैदल, फिर बाइक से, आप वैसे नहीं जा सकते। तो उन लोगों ने बताया कि उनके गांव में भी जुलूस निकला था जिस दिन राम मंदिर में, अयोध्या में जो बना था। सभी गांव के लोग शामिल थे और जश्न मना रहे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि 1 महीने बाद ही क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे अगर पुल नहीं बनेगा तो मुझे तो लगता है कि ये सब आप हर चुनाव में आता है, कहता है, लेकिन जब वोट देने आएंगे तो राम मंदिर अयोध्या देख के वोट देंगे। क्योंकि तो या आप मुझे बताइए कि दोनों में से किस चीज़ को वोट देंगे, आप राम मंदिर पर देंगे या अपने गांव के पुल के लिए। तो एक बारगी वहाँ पर सब लोग चुप हो गए, काफ़ी लोग बैठे थे। फिर उनमें से ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हम लोग अपने मुद्दे के साथ रहेंगे, अगर पुल नहीं बनेगा वोट नहीं देंगे। तो थोड़ा सा चेंज ये हो रहा था कि जश्न भी लोगों ने मनाया था, लेकिन इस बार अपने मुद्दों के साथ खड़े भी हो रहे थे। तो फिर मैंने वो प्रोसेस शुरू किया कि थोड़ा सा और लोगों के अंदर जाए। तो फिर मैंने कुछ बस से यात्रा की, ऐसे ही रैंडम की बस में लोग चल रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में, जब मार्च में अनाउंस हो गया। फिर मैंने ट्रेन में, स्लीपर में, जनरल में भी कुछ ट्रेवल किया कि लोग क्या बात कर रहे हैं। कुछ मैंने जानबूझ के जिस शहरों में गया वहाँ सुबह उठ के पार्कों का चक्कर लगाया कि वहाँ कुछ लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव में। इसी तरह से आरा में मैं था, फिर छपरा में। तो मैंने उसके पहले ये बताऊं कि कुछ रिपोर्ट्स आने लगी थी। आप सब लोग जानते हैं कि सर्वे आया था और सारे रिपोर्ट सर्वे बता रहे थे कि यूपी में कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि इस बार 70 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। जो बहुत सारे जैसे लोक नृत्य और CSDS है, उनके भी सर्वे बता रहे थे। और उसमें भी जो सवाल पूछे गए थे तो उसमें 22% लोगों ने कहा था कि मंदिर पे ही लोग देंगे, राम मंदिर बन रहा है इसलिए इस पर वोट करेंगे। और ये सब चल रहा था। और कुछ बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनकी राइटिंग्स भी आई थी, उसमें 1-2 हमारे जानने वाले भी थे लोग, प्रोफेसर भी आए लोग। तो वो लोग लिख रहे थे कि ये बहुत ही कोल्ड इलेक्शन है, बहुत ठंडा चुनाव है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। और जनवरी में जो इस इलेक्शन की जो एक डायरेक्शन फिक्स हो गई है, और राम मंदिर की डायरेक्शन जो फिक्स हो गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसी दिशा में ये चल रहा है। यहाँ तक कि फेज 1 का जो वोटिंग हो गई तब भी ये बात लोग कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतना बड़ा संगठन हो चुका है, इतना उसके पास पैसा है, इतना कैंपेन पावर है कि कोई मुकाबला नहीं है उसके मुकाबले। तो मुझे भी हैरत हो रही थी, क्योंकि मैं जब घूम रहा था तो लोग तो मुद्दों की बात कर रहे थे, कहीं मुझे साइलेंट इलेक्शन नहीं लग रहा था, कोई ठंडा चुनाव नहीं लग रहा था। और ये भी मैंने किया कि कोई कैमरा या माइक या डायरी निकाल कर किसी से बात नहीं की। और ये कोशिश हमने की कि जो आपस में जो लोग बात कर रहे हैं उसको केवल सुनूं, और अगर ठीक ठाक लगता है कि हाँ कुछ बातचीत का माहौल हो गया है तो कुछ सवाल भी पूछ लें। तो वो मैंने पहली स्टोरी वायर में की थी, वो मैंने करीब 1 महीने बाद लिखी, जो मैं अपने गांव में भी करीब 20 दिन में रहा। इस बीच में मैं ज़्यादा कुछ दिनों तक नहीं जा पाया चुनाव में, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई इसी दौरान, वो हॉस्पिटलाइज था। तो 20 दिन तो मैं नहीं कहीं गया था, लेकिन वो गांव में था तो वहाँ भी लोगों से बातचीत कर रहा था। तो वो मैंने स्टोरी लिखी कि ये माहौल तो चेंज है इस बार एकदम। मुझे तो ये लग रहा है कि एकदम चेंज है। लोग बेरोजगारी और महंगाई, संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और आम लोग बात कर रहे हैं, मजदूर हो चाहे राह चलते लोग हो, हर तबके के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। तो
तो थोड़ा सा वायर में भी इसको लेकर डिस्कशन हुआ कि ये तो अलग तरह का बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, बल्कि एक फर्स्ट पेज के बाद एक कन्वर्सेशन हुआ था वायर यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कहा कि ये चुनाव तो मुझे एकदम अलग लग रहा है, और तो बहुत सारे रिपोर्टर्स भी उसमें शामिल थे। तुम लोग कह रहे थे कि कोई मुद्दा ही नहीं नजर आ रहा है का। हमने कहा इस बार मुद्दा है, याद करिएगा कि 14 अप्रैल इसी बीच में पड़ा था, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। और यूपी में हमने देखा कि इस बार अम्बेडकर जयंती इतने बड़े पैमाने पर मनाई गई, बहुत जहाँ पर हर जगह प्रोग्राम हुए, काफ़ी लोग जुटे, और उस सारे जगह बातचीत का एक ही एजेंडा था, वो संविधान। तो ये बात आगे बढ़ती गई, फिर हम लोग और जगह गए, तो वो हमने कहा कि माहौल एकदम शिफ्ट हो गया है, और ये एकदम लोग मुद्दे पर चुनाव करना चाहते हैं। और एक बात ये भी साफ हुई कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करना चाहते हैं। यूपी में जो भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने देखा है कि इसको लोगों ने अपने मुद्दों पर हराने के लिए वोट किया। और आप कई ऐसे कैंडिडेट थे जो सपा के भी या कांग्रेस के, जो अपने संसाधन नहीं थे उनके पास पैसे नहीं थे, खासकर कांग्रेस के जो कैंडिडेट लड़ रहे थे। मैंने उनके अपने अपने एक कंस्टिट्यूंसी में देखा, खड़गे आए थे सभा करने के लिए, और वो कहाँ कर्नाटक के हैं, और यूपी के भोजपुरी बेल्ट में डिस्ट्रिक्ट में सभा हो रही थी, लेकिन 15,000 लोग उनको सुनने आए वो। और तो मुझे ताजुब हुआ, बहुत सामान्य सा टेंट था, खूब हवा चल रही थी, इतनी धूप थी, आप जान रहे थे कि उस समय टेम्परेचर 42, 41, 44 था। लेकिन इसके बावजूद जब 14,000 लोग, 15,000 लोग सुनने आए, फिर दूसरे जगह भी आए उसी तरह से, तब ये चेंज हो रहा था। दूसरी तरफ जो बीजेपी की मीटिंग्स हो रही थी, उसमें खूब सैकड़ों बस लगा के लोग आ रहे थे, तब आ रहे थे। लेकिन इनके सारे, चाहे वो अखिलेश यादव मीटिंग करें, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करें, या कोई भी नेता करे, तो उसमें 8-10 हज़ार तो ऐसे ही लोग आ जाते। तो ये सब वो दिख रहा था। लेकिन अभी दिल्ली में जो मीडिया है वो एकदम एक तरफा कि नहीं, कोई ऐसा होता है, पिछले चुनाव में भी अखिलेश की सभाओं में बहुत भीड़ हुई थी, ये सब हुआ। और कई ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने जिताया जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जिनके पास पैसा नहीं था, कैंपेन नहीं कर पा रहे थे। बादा में एक सपा के कैंडिडेट थे, उनका टिकट अनाउंस हुआ और उनको हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर सपा ने उनका कैंडिडेट उनकी पत्नी को दे दिया, पत्नी भी उनके इलाज के सिलसिले में दिल्ली में रही, वो कम समय तक वो चुनाव में आखिर में आई। लेकिन सारा पब्लिक ने, जनता ने उनका चुनाव खर्च उठाया, वो सभा लगवाई, उनके टेंट तंबू बैनर लगा के उनको जिता दिया। तो ये इस तरह से एक पूरा चेंज था माहौल में, और जबरदस्त रूप से जनता ही लड़ रही थी अपने मुद्दों के साथ, और हर जगह लोग खुले रूप से बात कर रहे थे महंगाई, और खासकर बेरोजगारी पर युवाओं का नेस्ट जो था वहाँ पर बहुत खुलकर दिख रहा था। और जो अग्निवीर योजना है, जाहिर है कि आप लोग जानते हैं यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं सेना में, और वो लोग बहुत हताश हो गए जो ही अग्निवीर योजना घोषित हुई थी। और उसके बाद ये केवल बेरोजगारी का एक मतलब अग्निवीर योजना एक सेगमेंट था, लेकिन उससे क्या हुआ कि युवाओं में जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी एकदम से टूट गई कि वो कोई नौकरी सरकार नहीं मिले। और ठीक इलेक्शन के पहले यूपी में 2 बड़े पेपर लीक हुए थे। एक सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें तो बहुत लाखों की संख्या में लोग आए थे, और फिर आरओ की परीक्षा हुई थी, दोनों लीक हो गए थे, और दोनों को कैंसिल करना पड़ा, जो अभी तक नहीं हो पाया, और 6 महीने बाद कहा गया था कराने के लिए। तो ये सब को लेकर एक पूरा माहौल था। तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले लोग मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई और संविधान जैसा मुद्दा, देखिए कि किसी ने भी चुनाव में नहीं समझा कि संविधान इतना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, और वो बना। और वो नीचे तक लोग, सामान्य लोग भी, कि जो ये चर्चा करने लगे ये सरकार जो है वो संविधान बदलना चाहती है, इसलिए 400 पार का नारा दे रही है। और उसमें भी ये हुआ कि अयोध्या में ही जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने भी कहा कि हमको 400 सीटें हैं नहीं तो संविधान बदल देंगे। कुछ राजस्थान के भी कुछ लोगों ने कहा, और ये धीरे धीरे पहले से भी लोगों के अंदर था। इसलिए देखिए कि सबसे गरीब लोगों को इस संविधान और लोकतंत्र की ताकत का पता है, क्योंकि इसी संविधान और लोकतंत्र आने के बाद उनको बोलने की आज़ादी मिली है, अपने मुद्दों को लेकर लड़ने की आज़ादी मिली है, अपनी बात कर सकते हैं, बहुत सारे काम उनको इस संविधान और लोकतंत्र ने दिए।
इसलिए सबसे गरीब लोग ही संविधान और लोकतंत्र के प्रति ज्यादा संवेदनशील थे। तो जब ये मुद्दा आया तो उनको, और यूपी में एक बात और हुई है कि यूपी में पिछले 7 साल से इतना जबरदस्त दमन है नागरिक अधिकारों पर और बोलने की आज़ादी पर, लिखने की आज़ादी पर, कि हजारों लोग, इसका कोई डेटा नहीं है, पिछले शुरू के 17 में जब सरकार बनी थी तो उसके 3 साल तक आए थे कि हर साल कम से कम 4 से 5 हजार लोग कम से कम सोशल मीडिया पर लिखने पर गिरफ्तार होते हैं। ये आंकड़े अभी तक गवर्नमेंट ने कभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन हम अखबारों को आप स्कैन करें यूपी के, तो हर अखबार में 2-4 खबर इसी पर आती है कि फलां व्यक्ति को आपत्तिजनक बातें कहने पे FIR हो गई, उसको गिरफ्तार करे। ये आपत्तिजनक उसने क्या लिखा था कभी बात आती नहीं है। वो सिर्फ भाजपा को क्या करता जाएगा, थाने में कह देगा कि उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट की, FIR हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। धरना प्रदर्शन एकदम बंद है। आप कोई किसी मुद्दे को लेकर आप DM क्या, पहले कोई भी आता था अपना दरी बिछा लिया, 10 लोग बैठे, दिन भर बैठे, ज्ञापन दिया, मांग की, नारेबाजी की, ये नहीं कर सकते। तुरंत पुलिस आ जाती है, आपको उठा ले जाती है, रोक देती है। तो ये सफोकेशन भी पूरे यूपी में जो अपनी बात कहने की भी आज़ादी छीन ली गई है। आप देखोगे कि लखनऊ में पेपर लीक के खिलाफ, आरक्षण में जो धांधली हुई उसके खिलाफ युवाओं ने बहुत प्रदर्शन किए, पूरे 5 साल तक किए। इतनी बार उनको लाठियों से पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। तो ये जो एक सफोकेशन भी पूरी जनता में था कि हम अपनी बात भी नहीं कर सकते हैं, वो सब को लेकर उनका गुस्सा था, जो इस बार वोट करने में वो टूटा है। इसलिए संविधान, लोकतंत्र, बेरोजगारी, महंगाई, फिर रूरल डिस्ट्रेस भी एक बड़ा मुद्दा था वहाँ पे। ये सब मुद्दे के साथ साथ ये जो एक सरकारी जो सत्ता का जो दमन है उत्तर प्रदेश में, और जबरदस्त रूप से वहाँ पर किसानों की जमीन को भी बड़े पैमाने पर छीना गया। अयोध्या से केवल अयोध्या की हम लोग खबरें देख रहे हैं, अयोध्या, गोरखपुर, बनारस, खासकर जो कुछ ऐसे बड़े शहर हैं और रूरल में भी, कि वहाँ पे सड़कें चौड़ी करने के नाम पर, नए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर ये जमीनें किसानों से जबरन ली गई और उनको कोई आंदोलन तक करने नहीं दिया। यहाँ तक कि आपके यूपी के बहुत सारे जिलों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया 17 से ही, जब से योगी आया है, तो इसलिए नहीं बढ़ाया गया कि जमीन की सस्ते में ली जा सके। तो वो गोरखपुर में भी हो रहा है, अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या में पराजय का एक BJP का एक भी बहुत बड़ा कारण था। सिर्फ गवर्नमेंट करेगी 21,000 लोग वहाँ डिस्प्लेस हुए, लेकिन ये गवर्नमेंट का डेटा है, इससे बहुत कई गुना लोग वहाँ डिस्प्लेस हुए हैं। उनके मकान तोड़े गए हैं, उनके घर ले लिए गए हैं, खेत ले लिए गए हैं। तो ये इसी तरह से नया अयोध्या बनाया जा रहा है, उसके लिए 3,000 एकड़ में 3,000 एकड़ करीब जमीन ले ली गई। गोरखपुर में 6,000 एकड़ का अधिग्रहण हो रहा है, बनारस में हो रहा है, लखनऊ में एक नदी के ब्यूटिफिकेशन के लिए 1,000 लोगों के घर बुलडोज कर दिए गए 10 दिन पहले। अकबर नगर पूरी एक बस्ती खाली करा के बुलडोज कर दिया गया, और फिर 3 और बस्तियां हैं, पंत नगर और रहीम नगर, उसको भी नोटिस चली गई है, वो भी 2-4 दिन में गिरा दी जाएंगी। तो ये जितना ये PM आवास में इन्होंने घर नहीं दिए होंगे, उसके कई गुना की संख्या में लोगों के घर गिरा दिए गए हैं बुलडोजर से। तो ये सब मिलकर एक जबरदस्त वहाँ पर आक्रोश बना। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मीडिया था, अभी तो मीडिया बहुत डिवाइड है, साफ तौर पर 14 के बाद से धीरे धीरे वो प्रक्रिया पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ से ये जो गोदी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया या टेलीविजन के रूप में आएगा, उसमें देखेंगे कि आप एक तरफा BJP के पक्ष में खबरें थी, विज्ञापन भी थे, और आखिर में कई फेज में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस इलाके में हम लोग थे, तो प्रधानमंत्री के 4-4 पेज के इंटरव्यू सभी अखबारों में छपे थे, चैनलों में भी दिखाया गया था, जिसमें वो अपने को बताए थे कि हम बायोलॉजिकल नहीं है। तो वो सब 4-4 पेज में छप रहा था, और आश्चर्य हो रहा था कि कैसे पत्रकार उसको एक साथ सारे अखबारों ने कब उनसे इंटरव्यू लिया। क्योंकि अगर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति इतने चैनल और अखबारों को इंटरव्यू देने लगे तो 10 दिन तो उसी में चला जाएगा उसका। लेकिन वो इंटरव्यू भी दे रहे थे, उसी दिन कैंपेन भी करके आ जाते थे, संभव नहीं है। तो हम लोग अखबार में जानते हैं कि ऐसे इंटरव्यू बस आ जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन और आंसर लिख के आ जाते हैं, आपको केवल छापना रहता है। तो ये काम अखबारों ने किया। तो एक तरफ से पूरा गोदी मीडिया ये कर रहा था। दूसरी तरफ ये था कि एक जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जिसमें बहुत सारे लोग 2014 के बाद निकाल दिए गए हैं,
ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई जिसमें लोगों को छोड़ना पड़ा। मैंने भी 2014 में ही छोड़ा था, ठीक इलेक्शन के समय, जब मोदी बतौर नेता के रूप में अनाउंस हुए थे। और गोरखपुर में जो उनकी सभा हुई थी, पहली सभा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा सीना 56 इंच का है, उस दिन मैं अखबार में था हिंदुस्तान अखबार में था। और आप आश्चर्य करिएगा कि किस तरह से मीडिया का नेचर बदल रहा था कि हमारे 14 रिपोर्टर को लगाया गया था उनकी सभा को कवरेज करने के लिए, सारे रिपोर्टर्स को भेज दिया गया था। और क्या था कि ये करेंगे क्या 14 रिपोर्टर, तो ये होता कि ये कितने बार हंसे, कितने बार मुस्कुराए और पब्लिक ने कैसे रिस्पांस किया, इसी पर उसको लिखना था। एक क्या था, वो क्या क्या पहने थे, किस तरह से हाथ हिला रहे थे, इसको ध्यान में रख के उसको लिखना था। एक को मंच की सजावट पर लिखना था। ये सब काम दिया गया। तो मैंने कहा कि मेरे लिए क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हमको भी भेज दीजिए, जब इतने लोग जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे। तो उसके कुछ दिन पहले एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ बहुत कि किस तरह से मीडिया का नेचर शिफ्ट हो रहा था। तो कुछ दिन पहले से खबर आ रही थी, वो हमारे भी अखबार में चल रही थी, कि मोदी जी ने यहाँ से पूरा फीडबैक मांगा है गोरखपुर से कि कौन कौन से मुद्दों को उठाया जा सकता है गोरखपुर में बोलने के लिए। तो बाकायदे उनके पास मुद्दे गए हैं और उस पर बोलेंगे। तो हमने कहा कि इसी पर हमको करने दीजिए कि हम जा रहे हैं, देखें वो मुद्दे उठाते हैं, गोरखपुर उठाते हैं, गोरखपुर के जितने मुद्दे हैं और उठाते हैं तो उसमें कितनी सच्चाई होगी कितनी झूठ होगी ये भी देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो छपेगा नहीं। तो हमने कहा तब और क्या मैं करूँ, उनका कपड़ा गिनने और ये सब तो जाना नहीं है। खैर वो 14 लोग गए और पूरा 3 पेज का वो छपा, पूरा उनका छपा। और मैं गया तो वाकई में वही आदमी पहले ही इलेक्शन कैंपेन में झूठ बोला है कि जो वहाँ का खाद कारखाना है उसको कांग्रेस ने बंद कराया, जबकि वो वाजपेयी जी की सरकार में बंद हुआ था। तो मैंने यही आके फेसबुक पर लिख दिया। अखबार में लिखने की इजाज़त नहीं थी तो फेसबुक लिख दिया। तो अगले दिन मुझे डांट पड़ी कि ये क्यों आपने किया। तो खैर यही से शिफ्टिंग थी और ऐसी स्थिति बना दी गई कि बहुत सारे लोगों को, और 10 दिन बाद मुझे रिजाइन देना पड़ा। कुछ झगड़े इतने बढ़ गए और मैंने पाया कि देश भर में उसी दौरान बहुत सारे पत्रकारों को ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई। अब ये शोध का विषय है क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मिला कि उसी दौरान अजीत अंजुम के लिए, चाहे अभिषेक शर्मा के लिए, चाहे और सारे पत्रकार जो इधर अपना ये यूट्यूब चैनल बना के पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देखेंगे कि लगभग इसी के आसपास समय से या तो लोगों को निकाला गया है या लोग छोड़ के भागे हैं। तो ये एक अलग मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी को लाने के लिए एक स्थिति बनाई गई थी, उसके बाद मीडिया में भी पूरा एक सफाया किया गया कि जो लोग प्रो पीपुल जर्नलिस्ट हैं और उनका बैकग्राउंड देखकर ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि वो जो हमारे संपादक आए तो वो आते ही मेरे पीछे पड़ गए थे। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक ठाक चल रहा है तो रोज। तो उसी तरह से मैंने बहुत सारे पत्रकारों से बात की तो उनका यही कहना था कि ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस चुनाव में भी ये जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे ये सारे यूट्यूब चैनल के लिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि लोगों के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई नहीं कर रहा था। आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो यूट्यूब चैनल पर शाम को मौज वहाँ भी जुड़ जाता है और वहाँ पर भी बहस होती है। लेकिन ये जरूर है कि जो बहुत सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड पे घूम रहे होते हैं, उनको वहाँ पे लोग बुला रहे थे और उनसे फीडबैक ले रहे थे। तो उसमें से ज़्यादातर जैसे बहुत सारे यूपी के भी जर्नलिस्ट, शीतल पी सिंह भी है, वो भी इस बात को कह रहे थे कि इस बार यूपी में बीजेपी की बड़ी पराजय होगी, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। उनको कह रहा था कि पिछले चुनाव में भी यही बात कर रहे थे वो विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्टर थे जो काफ़ी घूम रहे थे और जमीन की वास्तविकता की रिपोर्ट दे रहे थे। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग इतनी मुश्किल है इस समय कि मेन स्ट्रीम मीडिया पैसा है, उसके पास संसाधन है, वो करता नहीं है। अल्टरनेटिव मीडिया के पास पैसा ही नहीं है और वो किसी को भेज नहीं सकता। मैं अपने पैसे जुटा के मैं जा रहा था, मुझे लिखने के लिए कोई, मैं जानता हूँ जितना मिलेगा उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो चुका है। तो वो मैं कर रहा था कि मैंने चंदा जुटाया था। मुझे लग रहा था कि इस बार ज़्यादा जाएंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या लोगों में मन में चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। तो मैंने बकायदे चंदे करके पैसे जुटाए थे और फिर हम 2 मित्र, पहले तो मैं ट्रेन बस से किया, फिर एक मित्र थी उसकी गाड़ी थी, उसमें तेल डलवा के हम लोग निकलते थे 2 लोग रोज, तो हर दिन जाते थे।
सबकी सभाएं में गए, लोगों के पास गए, राह चलते बातचीत की, तो वो उस तरह से अब इस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग तो कोई कर नहीं रहा है। तो अल्टरनेटिव मीडिया के पास बहुत पैसा संसाधन ही नहीं है, तो मुश्किल से वो किसी तरह से अपने क्राउड फंडिंग से किसी तरह से अपने को चला पा रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि एक तरफा चुनाव था, एक तरफ पूरा संसाधन, पूरा जो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, लेकिन पब्लिक में इस तरह की चेतना इस बार दिखी है, और वो अचानक नहीं आई है, वो धीरे धीरे आई है कि लोग मीडिया को भी पहचान गए ठीक से। अपने तो बीजेपी और जो उसकी पॉलिटिक्स थी उसको तो पहचान ही गए थे, इस चुनाव में देखने को मिला कि मीडिया को भी पहचान गए कि कौन हमारा मीडिया है। वो स्पष्ट रूप से, जैसे कि गोदी मीडिया जो ही देखे, एक जगह मैंने बात की तो कुछ कैमरे वाले आ गए, चैनल वाले, एक दुकानदार से मैंने कहा कि ये गोदी मीडिया, कहा नहीं गोदी नहीं, मोदी मीडिया है। तो वो गोदी को भी मोदी मीडिया स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो वायर है, सत्या है, सत्या हिंदी है, स्क्रोल है, बहुत सारे ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं गांव-गांव तक और उनका वेलकम कर रहे हैं। अगर उनका रिपोर्टर उनको मिल जाता है तो उसको वेलकम करते हैं। एक जगह मैं था, कुछ यूथ से बात कर रहा था, ग्रामीण यूथ से, तो वो अनमने ढंग से हमसे बात कर रहे थे और लोग, ये भी बड़ा अच्छा उदाहरण है। फिर तो मैं परेशान था कि ज़्यादा ठीक ढंग से बात नहीं हो पा रही है। फिर उन्होंने पूछा कि आप किस चैनल में है, हमने कहा वायर में है, का नाम बताइए, हमने कहा मनोज सिंह नाम है। उसी देर में उसने मोबाइल खोल के वायर खोजा और फिर मेरा नाम सर्च में डाला, तो एक दो स्टोरी उसको दिख गई। तो उसके बाद कहे रुकिए 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 बैठिए, अरे आप बड़े देर से धूप में खड़े हैं, और वहाँ से दूर गया अपने घर पे ठंडा पानी या बिस्कुट लेके आ रहा है तो लड़का। तो इस तरह से वेलकम भी है कि अगर आप बताते हैं कि आप हैं तो वो लोग अलग कर रहे हैं। तो जनता भी इस मीडिया की असलियत को बहुत ठीक ढंग से पहचान गई चुनाव में, मुझे लगा। और वो टीवी में क्या चल रहा है, अखबार में 3-4 पेज का मोदी का इंटरव्यू छपा है, कोई देख ही नहीं रहा था, मतलब कोई उसको रियलाइज कर रहा था, कुछ उस पर जा ही नहीं रहा था। इसलिए इतना बड़ा कैंपेन कोई असर नहीं डाल सका। और जो ये लोग जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आखिर दिन तक रिजल्ट के आने के पहले हिंदू में मैंने एक रिपोर्ट देखी CRGS लोकनीत का कि ओवरऑल ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में है, उसके सारे गढ़ सुरक्षित हैं, उसमें ज़्यादा उसको कोई नुकसान नहीं है। ये इन लोगों ने पता नहीं किस तरह से सर्वे करके, क्या वोट करके ये सब किया था। और वो इसलिए भी हो रहा है कि लोग मीडिया से उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप चैनल लेके जाएं तो वो आप जो सुनना चाहते हैं वही करेंगे, हाँ मोदी जी जीत रहे हैं, हम तो खुद मोदी जी को वोट कर देखे हैं। तो ये इतना ढंग से लोगों ने पहचान लिया इस मीडिया को कि आप उसी तरह से करेंगे। उनकी दिल के अंदर की बात तो आप उस तरह से नहीं जान पाते, आपको बड़ा चुपचाप एकदम एक दृष्टा की तरह चुपचाप होकर बैठना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी लोग फॉलो करते हैं। मेरे साथ ही हुआ कि एक मैं आजमगढ़ में था तो कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मैंने ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लोग बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैंने ऐसे मोबाइल निकाल के उसका रिकॉर्डर ऑन किया, तो उन्होंने कहा कि आप ऑन कर रहे हैं, हमको जेल भिजवाएंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं तो कहे कि जेल भेज देगा योगी, आप नहीं जानते कितना खतरनाक समय है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि अब तक आपने देखा कि कोई कागज कलम और मोबाइल नहीं था। तो लोग उसी तरह से मीडिया से, इसलिए उनको जाहिर है कि ऐसी सूचना उनके पास आनी ही थी कि सब तरह जीत रहे हैं। और प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति भी आगे इंटरव्यू दे रहा था कि कोई नुकसान नहीं है, ये है। मैं बताऊं कि जो वायर की तरफ हमारी वायर के एडिटर भी थे, मैं उनके साथ था, एक गांव में गए थे, तो वहाँ पर एक बंदे ने पूछा कि आप किससे हैं, तो हमने कहा वायर से। अरे वो तो वही जिसमें करण थापर ने कल प्रशांत किशोर को पानी पिला दिया। तो और उसके बाद वो हम लोग से फोटो खिंचाने लगा, तो अचानक हम लोगों को लगा कि हम लोग भी कुछ महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो जनता ने अपना मीडिया भी पहचान लिया है और इनको मान लिया है कि ये है, इनको देखना नहीं है, वो कुछ भी चाहते हैं। इसीलिए इतना आप समझें कि आप उसमें सोने का हर्फ लगा के छाप दें कुछ भी मोदी के बारे में या इनके बारे में जो भी करें, उसका कोई असर आम लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। और वो एकदम अपने ठीक एनालाइज कर रहे हैं। मैं इसमें चुनाव में मैंने बहुत लोगों के पॉलिटिकल जो मुहावरे होते हैं उसको मैंने इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोग पुराने हो गए हैं, हम लोग पास कोई भाषा नहीं है पॉलिटिकल भाषा कि जिसमें लोग कहना चाहते हैं। तो भोजपुरी में है वो सब, तो हो सकता है आप लोगों को न समझ पाए, लेकिन
बहुत इंटरेस्टिंग। उससे ये लगा कि जनता की चेतना जो है आम लोगों की वो बहुत ऊपर है, और तमाम इतने दुष्प्रचार प्रचार के बावजूद वो ठीक ढंग से चीज़ों को एनालिसिस करके और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है उसको ग्रैब करना है, और इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है। और ये भी मैं कहूँगा कि ये परिस्थिति एकदम चुनाव के पहले नहीं एकाएक नहीं बन गई। इसकी पृष्ठभूमि में 22 का भी विधानसभा चुनाव थे, और धीरे धीरे ये पूरा जो इनका बनाया हुआ पूरा एक ऑरा है वो उतरने लगा था। उस चुनाव में भी उस तरह का रिजल्ट एक संकेत था। और एक आखिरी फिर बात करके फिर आप लोग सवाल करिएगा तो मैं बताऊँगा कि जो एक नया यूपी के रिजल्ट में इन सब के बावजूद एक जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है, क्योंकि जाति अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव में, और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो जो बीजेपी ने जो अति पिछड़े वर्गों में और अति दलितों के भी एक सेक्शन में जो 14 में एक सोशल इंजीनियरिंग की थी, वो फिर कंटिन्यू रही 19 के चुनाव में भी, 17 के विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन वो 22 के चुनाव में दरकने लगा था, वो दरक गया था। लेकिन उसको ये लोग पहचान नहीं पाए, या पहचान भी पाए तो वो उसको कुछ रफू ये लोग करते हैं ना बहुत, उसको कर नहीं पाए, और वो इस चुनाव में वो ज़्यादा दरार के रूप में वो बन गया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे जातियों को अपने पक्ष में झूठ बोल के उनको अपने पक्ष में इकट्ठा किया था। जैसे कि निषाद एक बड़े पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी वर्ग की जाति है जिसकी काफ़ी आबादी है, उनको कहा कि आपकी जो मांग है कि SC में आपको शामिल करेंगे, आपके बहुत सारे कास्ट को वो करेंगे, नहीं किया। पाल और गड़िया एक जाति है, इनको कहा कि उनको भी SC में लाएंगे, इस तरह का आश्वासन दिया था, वो किया नहीं। और लोगों को लगा कि ये तो, और दूसरा आप भी देखिए कि जितने जाति के नाम पर जो पार्टियां बनी है यूपी में, वो सब बीजेपी के साथ थी। यूपी में बीजेपी का अलायंस बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके साथ भाजपा तो अपने थी अपना दल जो सोनीलाल पटेल ने बनाया था बसपा से निकलने के बाद, और पूर्वी बिरादरी के लोगों को जो एक बड़ी खेतिहर जाति होती है उनकी पार्टी मानी जाती है वो। फिर निषाद पार्टी, फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की जो सुहेल देव भारती समाज पार्टी, ये सब जाति आधारित पार्टियां अपनी जातियों की अच्छी पकड़, और ये सब बीजेपी के साथ थे। और भी एक दो छोटी पार्टियां बाद में राष्ट्रीय लोकदल भी आ गई जो जाट और किसानों का प्रतिनिधित्व करती, लेकिन इसके बावजूद इनकी हार हुई। और ये खुद अभी इनके नेता भी ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि इस बार हमारी जाति के लोग भी हमारी पार्टियों के साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो ये जाति राजनीति की जो एक सच्चाई थी जनता के बीच, वो भी उजागर हो गई है कि ये जो हमारे नाम पर जो पार्टियां बन रही हैं वो हमारा वोट लेकर अपने परिवार को और परिवार के लोगों का आगे बढ़ा रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन जो हमारे रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं और एक छलावा में रख रहे हैं। उनके रियल इश्यूज हैं बेरोजगारी के, भयानक बेरोजगारी है, और काम उनके जो ट्रेडिशनल काम थे उनको भी छीन लिया गया है, जिस तरह का विकास की योजनाएं हैं, तो उसमें वो लोग काफ़ी गहरे संकट में है। तो उनको लगता है कि कभी आरक्षण का जो एक ये पार्टियां, छोटी पार्टियां कहती हैं कि हम आपको आरक्षण दिला देंगे, SC में शामिल करा देंगे, इससे आपको नौकरियां मिलने लगेंगी, तो वो नौकरियां तो बहुत सीमित हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि जो पूरा जो बीजेपी ने एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाया था वो टूट गया, और उसमें काफ़ी बड़ी दरार हो गई, और तमाम जाति पार्टियों के उनके साथ रहने के बावजूद भी उनको एक बड़ी हार हुई। 8% वोट यूपी में उनका कम हुआ है। पूरे देश में ओवरऑल बीजेपी को 63 सीट्स कम हुई हैं, लेकिन उनका वोट शेयर कम नहीं हुआ है ओवरऑल इंडिया में, 0.30 उनका बढ़ा है, लेकिन यूपी में उनके सीट कम हो गए, 26 सीटें कम हुई हैं, सिर्फ 33 सीटें उनको मिली, और उनका वोट शेयर भी 8% घट गया, 8% डाउन हुआ है। और पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक, बुंदेलखंड से लेकर अवध तक, हर रीजन में वो हारे हैं समान रूप से। कोई ऐसा नहीं कर सकते कि इस रीजन में उनको ज़्यादा सक्सेस हो गई, यहाँ पर ज़्यादा, वो एक समान रूप से हर रीजन में हारे हैं। जो बुंदेलखंड जो सबसे उनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, चित्रकूट में हारे, अयोध्या में हारे, और फिर आपके पश्चिम में भी हारे, और हमारे तरफ सिर्फ एक इलाका ऐसा कह सकते हैं, छोटा सा इलाका
पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जो हम जहाँ से हम आते हैं गोरखपुर और उस आसपास के 4-5 लोकसभा क्षेत्र जहाँ पे ये जीत गए हैं, और लेकिन वहाँ भी मार्जिन इनकी काफ़ी कम रही। जब इधर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि यूपी में बनारस है, यूपी में अयोध्या है और यूपी में गोरखपुर भी है, और ये तीनों जगह पे बीजेपी जो इनका जो ये जो जगह का जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, ये जगह जो है, लोगों के मन में जो स्पिरिचुअल बात है इस जगह को लेकर, उसको वो बदलना चाहती है, दूसरी तरह की करना चाहती है। लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपने हमको गोरखपुर की हिस्ट्री डिटेल्स में बताए थे। कुछ कम लोग ही जानते होंगे कि गोरखपुर में एक हिंदू मुस्लिम का शेयर्ड हुआ करता था। जैसे गौड़ी के फिल्म में वो बोल रही थी ना, बाबा बुदनगिरी में, मुझे बहुत एक ही तरफ टाइप का लगा कि बाबा बुदनगिरी हिल्स में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ जाया करते थे, सूफी टाइप का श्राइन था। वैसे गोरखपुर का जो मठ था वो भी पहले एकदम मैंने हिंदू मुस्लिम का जॉइंट वहाँ हुआ करता था। बहुत सारे मुस्लिम जो गाना गा के घूमते हैं और बाबा गोरखनाथ के बात बताते हैं, वो भी हुआ करते थे, और आप भी उसके बारे में लिख चुके हैं। तो ये सबको धीरे धीरे इंजीनियरिंग करके इतना मतलब एग्रेसिव टाइप का किया, और जबकि गोरखनाथ का जब पुराना जो कल्चर था उसमें एक्चुअली ब्राह्मणिज्म के खिलाफ ही था, है ना। मतलब नीच जाति के जो बोलते हैं लोग, वो लोग ब्राह्मणिज्म के खिलाफ ही ये धर्म था, वह नाथपंथियों का मानना था। तो इसको इन्होंने इंजीनियरिंग करके चेंज किया। फिर बनारस का भी जो हुआ करता था एक मिलजुल के जो एक संस्कृति, वहाँ पे कोई सोचता भी नहीं था कि ज्ञानवापी मस्जिद को कुछ खतरा हो सकती है, एकदम पास में ही है, सब लोग जाया करते हैं उधर पे। फिर जो आप बात करें अयोध्या का तो मतलब उनका तो नेशनल प्रोजेक्ट था। जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि वो अयोध्या को भारत का हिंदू धर्म का वैटिकन बनाना चाहती है, मक्का बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों का जो विजन है, जो ये 3-4 शहर को लेकर एक मतलब रिलीजियस डेस्टिनेशन करके, और ये लोग एकदम इंटरनेशनल ख्वाब दिखाने लगे लोगों को कि सब सारा दुनिया से लोग आकर अयोध्या में आ जाएंगे। अभी हमको पढ़ने को मिला कि सब डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही कैंसिल हो रही है, रास्ते टूट रहे हैं, मंदिर में तो लीक भी हो रही है। तो ये दोनों का हकीकत तो एकदम ही अलग है। तो आप इसके बारे में बताइए, ये 3 जगह में स्पेशली क्यों मतलब लोगों में इतना जो प्रचार के बावजूद क्यों लोगों में ये बदलाव इन तीनों जगह स्पेशली में क्यों आया? देखिए, पहले अयोध्या से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अयोध्या को इस बार यूपी में और पूरे देश में भाजपा इसलिए ज़्यादा वो थी कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, उसका उद्घाटन हो गया, तो हम तो पूरे देश में भी जीतेंगे और यूपी में तो बहुत बड़े रूप से जीतेंगे। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया। देखिए, 19 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसके तुरंत बाद वो ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट को वो लैंड दे दी गई जो करीब 70 एकड़ थी। और फिर उसके बाद 2 तरह के काम शुरू हुए। वो उसको दरअसल उनको एक इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था हिंदू वेटिकन ये बनाना चाहते हैं। अब उसमें लिखा था जनवरी में जब ये हुआ था, लेकिन जब मैं अभी गया तो मुझे लगा कि नहीं, वो सैफरन सिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा सैफरन कलर में उसको कर दिया है पूरे शहर को, और वो उसको और बढ़ा रहे हैं। तो उसमें एक तरफ से तो ट्रस्ट ने पूरे देश में चंदा लेने का अभियान शुरू किया। 40,000 करोड़ रुपए, मतलब अभी तक जो लास्ट उन्होंने बताया है, उसके बाद तो बताना बंद कर दिया। RTI से कुछ लोगों ने जानकारी मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि ये निजी संस्था है, इसलिए नहीं दी जा सकती। तो वो उसके बारे में नहीं बता रहे कि कितना पैसा आया, कितना उसमें लग रहा है, कितना लार्सन वो जो कंपनी बना रही है उसको दिया, कितना टाटा को दिया। इसके साथ साथ लेकिन एक दूसरा काम जो शुरू किया, वो 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने किया है, और उसमें पूरा एक नई अयोध्या बनाने का, और जिसमें आप समझिए कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट सेंट्रल का और यूपी का नहीं है जिसका फंड उधर अयोध्या डाइवर्स। अभी एक अध्ययन कराया बकायदे, वो पहले हमारे ख्याल से उन्होंने लगा था चुनाव के पहले वो रिपोर्ट आनी थी। EDI एक संस्था है
अहमदाबाद की भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान उसका नाम है, उसको यूपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कराया है। तो उसी ने ये पूरा दिया है कि 27 उस पर काम हो रहा है वहाँ पे, जैसे कि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, एक इंटरनेशनल वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। अब उसके पीछे क्या है, एक बड़ी अच्छी सी एक वहाँ रिजर्वायर था, उसको सुखा के उस पर खड़ा कर रहे हैं ये सब भी अंधेरे हैं। फिर एयरपोर्ट के लिए बहुत सारा किसानों का जमीन लिया गया। फिर अभी हार के बाद भी उसको अभी अनाउंसमेंट जारी है, तो अभी कहा कि एक वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम बनाएंगे, मंदिर म्यूजियम, जो 800 करोड़ का होगा, जिसमें पूरे मंदिरों के म्यूजियम, आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा, अध्ययन होगा, ये होगा। फिर उसके बाद वो सरयू नदी है, तो उसमें क्रूज ला के खड़ा कर दिया कि यहाँ लोग क्रूज में जाएंगे और उसमें होटल भी होगा, रेस्तरां भी होगा। फिर हर जगह से फ्लाइट शुरू कर दी, दरभंगा से भी, पटना से भी, अहमदाबाद, दिल्ली, फिर हैदराबाद, हर जगह से सारे, बल्कि गोरखपुर की जो फ्लाइट थी उसको बंद करके अयोध्या से शुरू कर दिया। इस तरह से बहुत सारे फ्लाइट अचानक कंपनियों ने दबाव बनाया कि आप वहाँ पे ले चलिए, और उन्होंने शुरू किया। लेकिन वो पूरा बूम तो बना ही नहीं, 1 महीने के अंदर ही उतरने लगा। वो सारे फ्लाइट बंद हो गए हैं, सिर्फ 2 फ्लाइट चल रही है, दिल्ली और अहमदाबाद। वो क्रूज का पता नहीं, उसका नाम जटायु रखा था, वो कहाँ चला गया वो लोग खोज रहे हैं, उसका कहीं पता नहीं। पैराग्लाइडिंग करा रहे थे वहाँ पे, अब ये सब सारे 1500 रुपया लगता था, तो वो भी कोई पैराग्लाइडिंग करने वाला वहाँ नहीं है। ये वहाँ पर संकेत इसके मिलने लगे, जिस तरह का पूरा ये बना रहे थे वहाँ पे। फिर सारे सड़कों को 4 लेन करना शुरू कर दिया। जो राम मंदिर को जाने वाली सड़क है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने टीवी पर देखी होगी, राम पथ, 4 पथ बना दिए, राम पथ, भक्ति पथ और 2 और पथ हैं, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। वो 13 किलोमीटर की सड़क 4 लेन कर दिया। उसमें सबकी ज़मीनें जिसकी भी पड़ी, छोटे दुकानदारों की, उसमें मंदिर भी रास्ते में पड़े, उनको हटा दिया, मस्जिद भी हटा दिया, फकीर मंदिर था उसको हटा दिया। और उसमें लॉजिक ये दिया, वो भी कोर्ट में दिया कि वो मंदिर में चूँकि पीएससी और सुरक्षा बल कैंप कर रहे थे, इसलिए वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, इसलिए उसको हटाया जा सकता है। राम मंदिर के मामले में लॉजिक लिया कि चूँकि राम वहीं जन्म लिया, इसलिए वहाँ को भले पूजा ना हो रही है, लेकिन वहीं मंदिर बनेगा, वहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरे हिंदू टेम्पल्स के बारे में ये लॉजिक दिया कि वहाँ नहीं हो रहा है तो हटाया जा सकता है, जबकि हो रहा था। इस तरह से भी वहाँ पर जमीन लैंड स्कैम बहुत बड़ा है, ये सब किया। लेकिन वहाँ एक लोगों का अलगाव हुआ, ये सब जो बड़ा बड़ा चीज खड़ा किया जा रहा है ना, तो उस और लोगों की जमीन छीन कर 1-1 लाख रुपया मुआवजा मिला है। सारे दुकानदार से आप किसी से भी जाके बात कर लीजिए, वो सब कहते हैं कि ये विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। और वो 13 किलोमीटर सड़क जिसके लिए सैकड़ों लोगों के घर गिरा दिए गए, वो इस बारिश में, पहली बारिश में 11 जगह वो गड्ढे हो गए, धंस गई पूरी वो। फिर वो एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, वो चूरने लगा। यहाँ राम मंदिर के तो बताया ही कि टपकने लगा है, क्योंकि उसमें कहीं पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सब केवल स्टोन लग रहा है, उसमें कोई ईंट और सरिया का इस्तेमाल ही नहीं है, सिर्फ स्टोन है। सब राजस्थान से सारे स्टोन आ रहे हैं, कई 3 तरह के स्टोन है, पूरा खोद डाला है राजस्थान को, वहाँ से स्टोन मंगा के ला रहे हैं। तो ये सब इतना बड़ा किया कि जो आसपास की जनता जो सामान्य रूप से वहाँ जाती थी राम मंदिर में, वो कहीं भी जाके सो गए, मंदिर में दर्शन किया। मंदिर पहले, राम मंदिर जाने पहले हनुमान मंदिर में जाते थे, फिर शरीर में स्नान किया और चले गए, सो गए, चले आए। उनको इतना बड़ा चीज देख के, इतनी सिक्योरिटी, इतने VIP रूल्स, ये वो देख के उनको लगा कि ये तो मेरी अयोध्या है ही नहीं। और ये उद्घाटन के बाद ही हमारे एक मित्र हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, उस समय वहाँ गए थे फोटोग्राफ्स करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि लोकल लोग नहीं आ रहे हैं, अयोध्या और आसपास के जिले के लोग नहीं आ रहे हैं, अहमदाबाद से लोग आ रहे हैं, बड़े धनिक वर्ग जो हवाई जहाज से उससे आ रहा है, और उनके लिए वहाँ पर होटल में इतनी चीटिंग है, 23,000 40,000 के कमरे मिल रहे हैं, तो वो सब अलग किस्सा है कि इतना ठगा जा रहा है वहाँ पर। ये सब तो स्थानीय लोग उससे एकदम अलगाव में चले गए कि ये तो हमारा अयोध्या है ही नहीं, ये तो कुछ और अयोध्या है। कुछ जिस तरह का उद्घाटन भी हुआ, VIP जाए, अक्सर VIP के लिए सारा बंद कर देता है, सब आगे पुलिस खड़ा कर देगा, लोग अपने ही, जिस दिन उद्घाटन था वो सारे मोहल्ले के लोग पैक रहे, वो अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये सब जो वहाँ पे सब पूरा किया गया है, एक नकली पूरा वो खड़ा किया गया है, उससे एक लोगों का रेजिस्टेंस भी हुआ, अलगाव भी हुआ।
और जो सामान्य रूप से राम और मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, हनुमानगढ़ी में जाते थे, सरयू में नहाते थे, वहाँ बड़े बड़े घाट बना दिए गए हैं। सरयू नदी का कुछ धारा मोड़ के एक अलग दिशा में उसको कर दिया गया है। तो ये सब अभी चल भी रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है। तो इससे एक दूसरी बात एक इंटरेस्टिंग थी कि भाजपा ने इसको बढ़ाने के लिए उद्घाटन के बाद सारे लोकसभा क्षेत्र में, यूपी में तो किया ही था और जगह किया था कि नहीं मुझे पता, कि हर लोकसभा से बसें किया था कि लोग जाए दर्शन करने के लिए, और बस लगा दी गई कि मुफ्त में हर विधानसभा सेगमेंट में। एक लोकसभा है 5 विधानसभा सेगमेंट होती है, तो वो 5 बसें लगा दी गई। वहाँ के बीजेपी जो यूनिट इंचार्ज था उसको जिम्मेदारी देगी कि लोगों को भेजिए, रोज एक बस जाएगी, मुफ्त में जाए और राम मंदिर का दर्शन करके आए। ये 10-15 दिन बाद ही उसमें पैसेंजर ही नहीं मिलने लगे। ये होने लगा था, लेकिन इसकी खबर नहीं छपी। तो जो हम लोग भी जब देखें कि वो तो खाली जा रही है, उसमें लोग जा ही नहीं रहे। तो ये एक, और जो आ रहे हैं वो गालियां देते हुए आ रहे हैं कि बहुत ठगी हुई, बहुत लूट हुई उनके साथ। वो तो अयोध्या है नहीं, ये कुछ और अयोध्या हो गई है। वहाँ तो चाय भी 70 रुपये की मिल रही है, कहीं आप रहने का खड़ा होने की जगह नहीं, 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ये होना पड़ रहा है वो। तो उससे एक जो दूरी बढ़ेगी, वो एक पीएससी जवान मुझे मिला जो वहीं पे ड्यूटी कर रहा था, तो उसने सही कहा, अभी भी वो निर्माण हो रहा है। मैं भी उस चुनाव के दौरान गया था देखने के लिए। जो गर्भगृह का जो शंकराचार्यों ने जो सवाल उठाया कि वो अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी भी वहाँ पे गर्भगृह के ठीक बगल में अभी भी कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन काम हो रहा, अभी पूरा नहीं हुआ। ये सब सवाल भी लोगों के दिमाग में थे और उससे एक अलगाव हुआ लोगों का। और ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट वो लोग सब जगह कर रहे हैं। और उसी के तर्ज पर योगी आदित्यनाथ को लगता है कि गोरखनाथ मंदिर पीछे न हो जाए, उसकी भी भव्यता बरकरार। अयोध्या में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नारा दिया है इन्होंने, आप जगह देखेंगे, दिव्य भव्य और नव्य, हिंदी में है वो, उसका स्लोगन है कि दिव्य मतलब बहुत बड़ा दैवी है, डिवाइन है ये, और भव्यता तो है ही पूरा उसके बाद, और नव्य है कि सब कुछ नया है। तो उस नया बनाने के चक्कर में वहाँ के सारे मोहल्लों में इस देखेंगे कि इतना इतना पानी लगा हुआ है। अभी भी राम मंदिर के ठीक 250 मीटर पर एक जलावन पूरा मोहल्ला है, वो पूरा पानी में डूबा हुआ। अब वहाँ पंपिंग सेट लगा के पानी फेंके जा रहे हैं, वहीं से रास्ता बनाया 13 किलोमीटर, जिसको भव्य कर रहे हैं, दिव्य कर रहे हैं, डिवाइन है, और वहाँ पूरे लोग पानी में डूबे हुए हैं और पंपिंग सेट चलाया जा रहा है। तो वहाँ लोगों की असलियत, इस जो विकास है उसकी असलियत, यही हाल बनारस का भी होता है, जिसको क्योटो बना रहे थे, यहाँ दिव्य भव्य नव्य बना रहे हैं, वो क्योटो बना रहे हैं। और गोरखपुर में नया गोरखपुर बना रहे हैं, उसके लिए भी 6000 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है कि वो एक नया गोरखपुर बनाएंगे। और अयोध्या में आप देखेंगे कि नया अयोध्या में कौन लोग हैं। अभी 3 रोज पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही पूरे देश के जो अमीर लोग हैं उन्होंने वहाँ जमीन खरीदनी शुरू कर दी, और 15 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने खरीद ली है। उसने पूरी नाम छापी है, लिस्ट छापी है, 2500 उसने रजिस्ट्री का स्टडी किया। श्यामलाल यादव की बहुत मीटिंग रिपोर्ट है कि उसमें अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी सीएम का लड़का खरीद रहा है, वो जो यूपी का एसटीएफ का चीफ है जो अतीक को मारने का श्रेय लेता है, वो भी खरीद रहा है ज़मीन वहाँ पर। वो सब ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच भी रहे हैं, उसमें पैसा भी बना रहे हैं। फिर राम मंदिर ट्रस्ट पर भी एलिगेशन है कि उन्होंने ज़मीन प्राइवेट पार्टी से खरीदी 40 लाख रुपए में, और 2 घंटे बाद वही प्राइवेट पार्टी ट्रस्ट को 2 करोड़ में ज़मीन बेच दी। ये भी सब आया है, इस पर कोई जांच नहीं है। तो वो एक बड़ा लैंड स्कैम भी चल रहा है वहाँ, भयानक है वो, कि वो सब जो अयोध्या के लोगों को एक तरह से निर्वासित किया जाएगा, वो निर्वासित हो रहे हैं वहाँ से। और ये पूरी अमीरों की दुनिया, अमिताभ बच्चन भी जाके वहाँ पर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। फिर सारे लोग यहाँ पे होटल, अडानी ग्रुप ने वहाँ ज़मीनें खरीदी हैं, कॉर्पोरेट्स ने ग्रुप खरीदी है कि पूरी लिस्ट उसकी आएगी। अभी और रजिस्ट्री का स्टडी होगा तो और भी आएगा। तो गोरखपुर में भी जो पूरा जो एक कह सकते हैं कि धर्म का एक कॉर्पोरेट का पूरा इन्होंने बना दिया है एक मिक्सचर, वो पूरा वो अयोध्या में भी जाके देखा जा सकता है, और गोरखपुर में भी आप इसको देख सकते हैं कि। और जो आप बोल रहे थे गोरखनाथ जी के बारे में, गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ जी मंदिर के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन मंदिर के महंत भी अभी भी हैं।
ये भारत के ही लोकतंत्र में हो सकता है। वो उस मंदिर के महंत भी बरकरार हैं, अभी भी हैं, और हर हफ्ते गोरखपुर आते हैं और मंदिर का हिसाब किताब, उसके डेवलपमेंट का काम वो देखते हैं। जो हेड प्रिस्ट भी हैं तो बहुत सारे रिचुअल में हिस्सा भी लेते हैं, और साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जो नाथ संप्रदाय का वो मंदिर है, वो कभी हिंदू मुस्लिम लोगों के एकदम साझे लोगों का था, और सबसे गरीब जाति है। और इस पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी की किताब है, रांगे राघव की किताब है, डॉक्टर मोहन सिंह की किताब है, बहुत सारे लोगों की पढ़ेंगे। और जो आप हमारे बंगाल में जो बाउल सिंगर हैं, तो ठीक उसी तरह के वो सिंगर थे जो सारंगी सिंगर हैं। वो एक छोटा सा सारंगी होती है जिस पर वो गाना गाते हुए घूमते हैं, और वो गोपीचंद और भरथरी का गाना गाते हैं। गोपीचंद के बारे में कहा जाता है कि बंगाल के राजा थे, और भरथरी उज्जैन के राजा थे, और ये गोरखनाथ के से प्रभावित होकर ये नाथ सेक्ट में आ गए थे, जोगी हो गए थे घर बार छोड़ के। तो ये सारे जोगी जो लोग हैं उस सारंगी पर गांव गांव घूमते हैं और उनके बैराग्य का गीत गाते हैं कि घर छोड़ के, भरथरी ने घर छोड़ दिया था, शादीशुदा थे उस समय, पत्नी को छोड़ के चले गए थे, और ये तो अपनी माँ को छोड़ के चले गए थे। तो माँ का गीत गाते हैं, बहुत मार्मिक गीत होता है। तो ये और सब ये मुस्लिम है, ये सब लोग मुस्लिम हैं, लेकिन सैफरन कपड़ा पहनते हैं जिसको कंथी कहा जाता है। उसमें केवल एक गला होता है, ऊपर से ओढ़ लिया जाता है, और उसको गाते हुए घूमते हैं चारों तरफ। वो उसका जिक्र मिलता है कि गोरखपुर से चलते चलते यहाँ कोलकाता तक लोग आए हैं, वो सारंगी सिंगर, और उनका बाउल सिंगर से भी एक अच्छा तालमेल का जिक्र मिलता है। तो ये बताता है कि जो नाथ संप्रदाय था, एक तो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ, कि जो ब्राह्मण धर्म था, जिसको ये सनातन आजकल बोलने लगे, उसमें जो भेद था, जात के नाम पर भेद था, धर्म के नाम पर भेद था, स्त्री पुरुष में जो भेद था, उसके खिलाफ गोरखनाथ ने आवाज़ उठाई। और वो कहते थे किसी भेद को नहीं मानना है। उनका तो एक वो है, एक वो पोएट भी थे, हिंदी के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं गोरखनाथ। 11वीं सेंचुरी के वो सबसे बड़े पोएट हैं, कबीर के पहले। और उनकी पोएट्री जो है वो डॉक्टर पीताम्बर दास बर्थवाल ने उसको कलेक्ट किया था, और जिसमें 245 शब्दियाँ हैं, इनको शब्दी कहते। एक शब्द उनकी ये है कि मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत बानी, आगिला आगिना होगा तो हे अवधू तू होगा पानी। कि मैं मन में भीतर, अपने भीतर रहता हूँ, मीठा बोलता हूँ और किसी से भेद नहीं करता। और हे योगी, अगर कोई आग बन के जला रहा है तो तुम पानी बन जाओ और उसे शांत करो। ये गोरखनाथ ने कहा है। और उसी नाथ संप्रदाय के हमारे पीठाधीश्वर जी भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो सब लोग जानते हैं कि कितना पानी है वो तो ये उस इतना शानदार ट्रेडिशन है। तो वो उन लोगों पर मैंने एक स्टोरी की थी 2017 में, जब योगी, वो मेरा पहले से काम था लेकिन मैं लिख नहीं पाया था, तो फिर उसको कहा गया कि आप जितना भी कर चुके हैं। तो उन योगियों के गांव में गया था मैं। अब मुश्किल ये है कि बड़ा करते हुए वो दुख हो रहा है कि वो ट्रेडिशन खत्म हो रहा है। कितना अटैक हुए हैं उनके ऊपर, मुस्लिम जोगियों पर। उनके फैमिली के अंदर भी है कि क्यों सैफरन पहनते हैं। अब वो सारंगी सिंगिंग को बेगिंग समझते हैं उनके घर वाले की, क्यों भूख मांगते हैं। तो उनके अंदर भी उनके ऊपर थ्रेट है कि मत जाइए। और बाहर से भी इन लोगों का था कि मुस्लिम होकर क्यों ऐसा करते हैं। तो ये जो कंपोजिट कल्चर का एक बहुत शानदार ट्रेडिशन था, अब वो कम जगह रह गया है। लेकिन ये अलग अलग जगहों पर, सिर्फ यूपी में ही नहीं, राजस्थान में भी और पश्चिम बंगाल में भी उनके ट्रेडिशन का जिक्र मिलता है। और उनके गाने वाले गीतों को भी लोगों ने, और उसमें सारे जोगी एक ही ट्रेडिशनल तरीके के गीत नहीं गाते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें चेंज किए हैं, जिसमें जेंडर के सवाल भी आए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पढ़े लिखे नहीं है एकदम। उनके मैंने करीब 15-16 लोगों के इंटरव्यू किए। तो एक जोगी जो मुझसे उन्होंने सुनाया था, तो वही भरथरी का जो गीत है उसमें बदल जाता है। वो उनकी वाइफ, जब उसमें नाथ संप्रदाय में ये भी है कि आप जब जोगी बन जाएंगे तो एक बार अपने ही घर आपको भिक्षा मांगने के लिए आना पड़ेगा। तो भरथरी भी आते हैं
तो पत्नी से भी क्षमा मांगते हैं, तो पत्नी उनको काफ़ी उनको जलील करती है कि आपने शादी किया था, उस गाने में है पूरा कि वो कि आपने शादी किया था, आपकी दायित्व था कि हमारे साथ रहने का, हमारे सुख में रहने का, और छोड़ के बैरागी हो गए, उसमें वो जवाब नहीं दे पाते। तो उसमें योगियों ने बहुत सारा चेंज किया है। फिर वो माँ वाला तो बहुत भी मार्मिक गीत है, तो उन गीतों का भी कलेक्शन कुछ जगहों पर मैंने 15-20 गीत जोगियों से जो सुने थे उसको कलेक्ट किया था। अभी एक और काम उस पर बाकी है, मुझे लगता है कि उसको किया जाना चाहिए कि एक तो गोरखनाथ मंदिर आप जाकर के देखेंगे तो आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। उसमें गोरखनाथ की मूर्ति है, बगल में हनुमान जी की भी मिल जाएगी। लोग उसको सनातन धर्म बनाना है अब, तो हनुमान जी हैं, काली जी हैं, सब लोग की मूर्तियाँ मिलेंगी। जबकि नाथ संप्रदाय में मूर्ति पूजा है ही नहीं, वो केवल ध्वनि, अखंड ध्वनि एक जलती रहती है, और उनके जो गुरु होते हैं वो उन्हीं की समाधियां बनाते हैं। तो एक जगह और मुझे कुशीनगर में एक ऐसे मंदिर का पता चला, तो मैं वहाँ गया तो देखा कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ समाधियां थी और एक अखंड ध्वनि चलती रहती। तो वो जो लगाव उन लोगों का था, तो पहले के लोगों का, ये सारे जो सारंगी सिंगर हैं ये लोग भी मंदिर जाते थे। और वहाँ पे इंटरेस्टिंग है, मैंने तो वो दौर नहीं देखा है, जब मैं गोरखपुर आया था तो वो अब 52 एकड़ में दिग्विजयनाथ के बाद वो बदल गया, वो पूरे हिंदुत्व पार्टीज का सेंटर हो गया। लेकिन आप दिग्विजयनाथ के पहले जो लोगों ने मंदिर को देखा था तो वो अखंड ध्वनि ही थी, और उसमें लोग चक्कर काटते थे और उससे उसी जो ध्वनि थी उसके से उस दीवार पर अपनी मनौती लिख दिया करते थे कि हम पास हो जाएंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब वो एक बहुत ह्यूज टेम्पल में, जिसमें अभी कुछ मुस्लिम फैमिली को भी फिर हटाया गया है, तो ये सब करके वो बना रहे हैं। अब वो नाथ संप्रदाय से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि वो खुद उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये सनातन धर्म का हिस्सा है नाथ संप्रदाय, जबकि कभी नहीं रहा। उसको अब वो सनातन धर्म का हिस्सा नाथ समुदाय को बता रहे हैं। मूर्ति पूजा को स्थापित कर दिया उन्होंने, फिर उसका तो हम लोग उसको कहते हैं कि पहले उसका हिंदुआइजेशन हुआ, क्योंकि हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे दिग्विजयनाथ, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, और उसके बाद उसका क्षत्रियाइजेशन हो गया, मतलब अब सिर्फ एक ही जात के लोग वहाँ महंत होते हैं पिछले 3 पीढ़ी से, ठाकुर लोग। तो ये सब उनके ऊपर ये नाथ संप्रदाय की जो मूल शिक्षाएं हैं, गोरखनाथ की जो मूल ओरिजिनल सेइंग है, अभी अमेरिका में शायद लंदन में भी उनके गोरखनाथ सेइंग को लेकर एक किताब आई है, और एक बहुत अच्छा रिसर्च कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पैट्रिसिया क्रिस्टीना, तो उन्होंने जो नाथ संप्रदाय के जो फारसी टेक्स्ट हैं उसमें किस तरह से कंपोजिट कल्चर आया है, वो खासकर राजस्थान में उनको अवनी सलूक और एक और टेक्स्ट मिला था, उसमें उन्होंने 2 आर्टिकल लिखे हैं, वो वायर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, आप लोग उसको पढ़िएगा। तो ये एक दिखाता है कि कैसे कंपोजिट कल्चर को सनातन करके उसके अंदर ला के, और फिर वो बहुत सारा चेंज कर दिया गया। मेरे रहते मैंने देखा कि वहाँ पर धर्मो रक्षत विजयताम करके ऐसा कोई पट्टी कभी नहीं लगा था। कुछ जगहों पर ये गोरखवाणी है, लेकिन अब वो नई पट्टियाँ लग रही हैं जो गोरखवाणी गायब होती जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि मैंने अपने जीवन में 2 महंत देखे, दिग्विजयनाथ को नहीं देखा, लेकिन महंत हरिनाथ को देखा था, जो राम मंदिर आंदोलन के भी वो अध्यक्ष थे। और लेकिन ये महंत कभी भी जो स्पीच देते हैं, चाहे पब्लिक में, चाहे स्पिरिचुअल में, चाहे मंदिर के रिचुअल में या किसी दूसरे जगह, मैंने कभी इनको गोरखनाथ की वो जो शब्दियाँ हैं उसको नहीं सुना, योगी आदित्यनाथ से भी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। और कोई सुना हो तो बता भी नहीं सकता, बोलते ही नहीं, पता नहीं क्यों। जिस मठ के महंत हैं, जिस नाथ संप्रदाय के दावा करते हैं, उनकी सेइंग इनके खिलाफ है, इसलिए उसको बात ही नहीं करते। तो ये बात विद्वानों ने भी दबाए रखी। इसके पहले हमारे पहले और तमाम लोग विद्वान हुए, उन्होंने भी इस बात को कि नहीं, सब धर्म संभाव है, बड़ा अच्छा है, सब लोग हैं, लेकिन किस तरह से उसमें सारंगी सिंगर उनको बहिष्कृत कर दिया गया, वहाँ से उनका आना जाना रुक गया। फिर किस तरह से वहाँ के जो मुस्लिम सराउंडिंग सारा मुस्लिम फैमिली है, बुनकर है,
आप गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ, जैसे बनारस में भी आधा बुनकरों का ही मोहल्ला है, मऊ में भी बुनकरों का, ये सारे बुनकर थे। और बुनकर लोग ही जो है सबसे ज़्यादा नाथ संप्रदाय में है। और उसके बाद फिर जब कबीर आते हैं तो वो भी लोग उससे जुड़ते हैं। तो एक पूरी ट्रेडिशन है, बुद्ध से पहले बहुत सारे लोग उसमें हैं, लेकिन बुद्ध से फिर आपके ये इनमें एक धारा है जिसको हम लोग को अध्ययन करना चाहिए कि ये सारे लोग किसी तरह के भेद को नहीं मानते हैं, आडंबर का विरोध करते हैं। और तीसरी बात जो कहते हैं कि जो कहिए उसी तरह से रहिए, वही कहनी और रहनी, ये बात कहते हैं कि कहनी और रहनी में एकता होनी चाहिए। ये तीन बात बहुत बड़ी वैल्यू है कि मतलब आप किसी तरह का भेद न मानिए, जात का भेद नहीं, मनुष्य के भी भेद नहीं मानते। ये बुद्ध भी कहते थे, फिर उसके बाद गोरखनाथ भी कह रहे हैं, और फिर उसके बाद कबीर भी। और हम लोग उस इलाके के वारिस हैं क्योंकि तीनों वहीं थे। बुद्ध का जन्म भी हमारे लुम्बिनी में हुआ है, हमारे गोरखपुर से 80 किलोमीटर पर है। उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ, वहाँ भी 60 किलोमीटर दूर है। मगहर जहाँ कबीर का निर्माण हुआ वो 40 किलोमीटर है गोरखपुर से। अब गोरखपुर खुद गोरखनाथ की धरती है, लेकिन वहाँ कैसे, जहाँ पर इतने बड़े संत रहे जिन्होंने इतनी बड़ी बातें कही, वहाँ पर किस तरह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स ग्रो कर गई, ये एक बड़ा मतलब दुर्भाग्य कह सकते हैं, आश्चर्य भी है कि इसके बाद के लोगों ने काम नहीं किया। अब कुछ तमाम लोग बुद्ध और कबीर को लेकर भी वहाँ एक अभियान चला रहे हैं कि उनकी सेविंग्स को लोगों तक पहुँचाई जाए और जो मतलब की राजनीति है उसको परास्त किया जाए। ये बहुत ही इंसाइटफुल, एक्चुअली ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक कबीर के नाम लेकर कोई दंगा फैला रहा हो, ऐसा ही हो रहा है। तो ये बात तो ज़रूर मतलब डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में लिखना चाहिए, सबको जाना बताना भी चाहिए। अभी हम हमारे दूसरा सवाल और उसके बाद मैं ओपन कर दूंगी, वो पत्रकारिता को लेकर है। जैसे आपने बताया था कि 56 इंच के छाती और 14 रिपोर्टर, तो फिर 4 इंच के लिए एक रिपोर्टर है ना। तो ये जो माहौल हुआ और सब लोग निकाले गए, उसके बाद आपने बोला कि सब लोग अपने अपने कुछ जुटा लेकर संसाधनों को जुटाया और कुछ चैनल्स बनाए, कुछ बनाए। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ सस्टेनेबल इज दिस, क्योंकि मेरा ये अंदाज़ है और आपसे भी बात कर रही थी तो मुझे लगा कि एक चैनल्स को अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो खुद के, जो ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज नहीं हो, तो आपको 4-5 साल तो लग ही जाते हैं टू सॉर्ट ऑफ कलेक्ट वन ऑडियंस, और एक चैनल का जो परिचय हो वो परिचय आ जाना चाहिए। और उसके बाद आप एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे कि जो लोग ये कर भी पा रहे हैं, जिनके चैनलों पर जो आप बता रहे थे कि एक कमी है, वो है ग्राउंड रिपोर्टर्स को मतलब शामिल करना। और दूसरी तरफ आपके जैसे लोग खड़े हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग ही 24/7 कर रहे हैं। तो अभी ये जो दो धाराएं हैं, एक एकदम मैंने सॉलिड ग्राउंड रिपोर्टिंग 24/7 और एक धारा जो एक ऑडियंस इकट्ठा कर पाई है 4-5 सालों में, जिनके पास एक ऑडियंस बनी है अभी। और आपके बातों से पता लग रहा है कि ये सिर्फ सिटीज़ में नहीं सुन रहे हैं बल्कि विलेजेस में सब लोग, मैंने एक वीडियो डाले तो 1 घंटा बाद 12 लाख लोग देख चुके हैं। ऐसा तो कोई मैंने वो जो टीवी न्यूज़ और क्या है रिपब्लिक, इसको भी नहीं आता है। तो एक तरफ इन्होंने ऑडियंस इकट्ठा किया है 4-5 सालों में, एक तरफ आपके जैसे लोग हैं, तो क्या कुछ डायलॉग बन सकती है realistically speaking so that these two streams can come together and actually do something to balance both ground reporting as well as analysis? And second question ये है कि एक बिल अभी मोदी सरकार के टेबल पे है जिसमें वो अभी YouTube और ये सब डिजिटल माध्यम को पोर्टल जैसे कि आपकी गोरखपुर न्यूज़ लाइन जैसे पोर्टल या वायर जैसा, ये सब को भी और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। तो गिवन द सिचुएशन दे विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस। लाइक आपने बोला, आपने बहुत आशा की बात बोली कि लोग अभी सुन भी नहीं रहे हैं, मन की बात बोले जा रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा है, कोई मैंने सब लोग ने इनकार कर दिया। लेकिन व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव एंड वो कितना रियलिस्टिक है और कितना बन पाएगी? ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है खासकर वो डिजिटल और यूट्यूब के जरिए ही हमारे सामने आया है।
बहुत पहले एक आंदोलन शुरू किया गया था। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव मीडिया का कंसेप्ट पुराना है, काफ़ी पहले जब प्रिंट का ही बोलबाला था, प्रिंट ही था, तब भी एक अल्टरनेटिव मीडिया की जरूरत हुई थी। और उसके सबसे बड़े पैरोकार बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अनुज वर्मा जी थे, जिन्होंने काफ़ी नेपाल और दक्षिण अफ्रीकी साहित्य पर काफ़ी लिखा है, रिपोर्टिंग भी की है। तो उन्होंने वैकल्पिक आंदोलन से एक ड्राफ्ट लिखा था और पूरे देश में इस पर चर्चा भी हुई थी कि कैसे उसको खड़ा किया जा सकता है। लेकिन वो ज़्यादातर वो बन नहीं पाया, कुछ लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ही देश में लघु पत्रिका आंदोलन रहा है, जिसमें जगह जगह से छोटी छोटी पत्रिकाएं निकलती रही है। लेकिन उसका ज़्यादातर नेचर साहित्यिक रहा है, लेकिन उसमें इस तरह के कभी कभी रिपोर्टिंग भी हुआ करती है। अभी जब ये जो आया है टेक्नोलॉजी बदलने के बाद, जो पहले डिजिटल से शुरू हुआ, वेबसाइट बनाने से, उसके पहले कुछ ब्लॉग बनाने से शुरू हुआ, और अब सबसे ज़्यादा यूट्यूब, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिटर्न नहीं है, कोई पैसा नहीं है, मिलता नहीं है, क्योंकि उसकी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लाखों उसके व्यूअरशिप हो जाए। जैसे मेरा यही है गोरखपुर न्यूज लाइन, अभी तक 10,000 तक है उसका। हालांकि उसको उससे समाचार कोई भी ले लेता है, लोग चाहते हैं कि गोरखपुर का एथेंटिक होगा तो ले लेते हैं, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है, लेकिन उसका कोई इकोनॉमिक्स मॉडल नहीं है, पैसा आज तक नहीं मिला मुझे उससे। तो कुछ लोग सहयोग कर देते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल में एक रेवेन्यू मॉडल है कि उसमें एक तो व्यूअरशिप भी काफ़ी आ रही है, और फिर उससे यूट्यूब के जरिए पैसे भी आ रहे हैं, तो वो सस्टेन कर रहा है। इसीलिए जो सारे पत्रकार जो थे वो लिखने में ना छोड़ के सब यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन उसमें हम, मेरे जैसे व्यक्ति को दिक्कत ये लग रही है कि सब एनालिसिस कर रहे हैं, रूम में बैठ जाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, और फिर वो स्ट्रीम यार्ड से उससे लोगों को 4 लोगों को जोड़ लेंगे और फिर एनालिसिस शुरू हो जाती है, दिन रात एनालिसिस हो रही है। तो जबकि दूर दूर में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो रिपर्सन है लोगों की, वो है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, तो वो एक प्रॉब्लम है। उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास ठीक ठीक रेवेन्यू आ रहा है, तो वो 2-3 लोगों को रख के कभी कभी कोई खास टाइम में, जैसे अभी कंज्यूम इलेक्शन टाइम में निकलते हैं, या कोई बड़ी घटना हो गई तो जब निकलते हैं, लेकिन उसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई एलिमेंट दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। ज़्यादातर एनालिसिस और खबरों की व्याख्या या उसको एंगल, उस पर ये बात होती है। लेकिन उसमें एक पहलू जरूर है कि उसमें बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़ते हैं। एक चीज़ और हुई, 14 के बाद बहुत सारे पत्रकारों ने छोड़ दी नौकरी, क्योंकि ये घुटन की जिंदगी सबको बर्दाश्त नहीं थी, तो अच्छे पत्रकार सब लगभग बाहर आ गए। अब जो है वो सिर्फ आप समझ सकते हैं किस तरह के होंगे, वो उसी तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार है। तो ये अच्छे लोग अपने को सस्टेन करने के लिए लोगों ने जगह जगह लिखना शुरू किया, उससे किसी तरह से उनका बहुत तो नहीं, लेकिन दाल रोटी किसी तरह से चल जाती है। तो अब यूपी में भी, बिहार में भी अगर आप इनकी काउंटिंग करिए तो अलग अलग रीजन क्षेत्र में ऐसे ठीक ठाक लोग हैं जो अपने इलाके और उसमें होल्ड रखते हैं, काफ़ी लोगों से संपर्क में है। तो वो लोग जब इस पर आते हैं तो एक सही वॉइस ग्राउंड रिपोर्टिंग की आती है। और आगे इसका भविष्य देखिए, मुझे रेवेन्यू मॉडल तो यूट्यूब चैनल का अच्छा है, हमको भी लोग सलाह दे रहे हैं कि आप बना लीजिए। तो अब हमको लिखने की आदत ज़्यादा है, टेक्स्ट लिखने वाला सोचते हैं इस पर, लेकिन वो इतनी हड़बड़ी में ये लोग यूट्यूबर्स रहते हैं, कभी कभी ज़्यादातर लोग जिस टीवी चैनल में जो हड़बड़ी हंगामा रहता है, जिसमें कुछ भी बोल देने की, कुछ भी दिखा देने की, कुछ यूट्यूबर्स उसमें भी हैं। और वो जब उनको जो व्यूअरशिप आने लगती है तो रोज वो जो 25K और 40K का जो चस्का लग जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सस्ते किस्म का भी काम शुरू कर देते हैं उसको बनाए रखने के लिए। तो कुछ भी चलाना शुरू कर, जैसे एक चैनल है लखनऊ का, उसमें अगेंस्ट ये रिजीम को काफ़ी अच्छी खबरें उसने दी हैं, लेकिन वो एक जोशी को बैठाने लगे चुनाव में, और वो रोज़ भविष्यवाणी करता था कि भाजपा के लिए बहुत खराब है। हाँ, तो एक बड़े नेता मर जाएंगे और संजोग से एक सुशील मोदी की डेथ भी हो गई, तो वो काफ़ी लोग उस पर आ रहे थे। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है ना कि इस तरह से चलना। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस तरह से राजनीति में पोलराइजेशन किया है पब्लिक का, तो बहुत सारा पब्लिक इसको भी
तरह सुनने को तैयार हो जाती है कि ठीक है, ये भी सही है, अगेंस्ट तो है ना। लेकिन हम लोग को इनको मतलब सेल्फ रेगुलेशन का एक होना चाहिए कि भाई विश्वसनीयता नहीं तो घटनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक और मशहूर पत्रकार का यूट्यूबर है, वो जब से सरकार बनी है तब से कम 300 ऐसा कर चुके हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अब सरकार गिरने ही वाली है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब अभी वो लास्ट जिस दिन नायडू आ रहे थे उन्होंने कहा कि बस सब गिर जाएंगे। तो ठीक है, आपकी इच्छा आकांक्षा है, लेकिन रियल पॉलिटिक्स तो ये नहीं है। अभी तो दूर दूर तक 2 साल तक तो नहीं देखने वाली। तो ये सब जो कर रहे हैं लोग, इससे क्या हो रहा है कि वो हम लोग को भी गालियां अभी नहीं पढ़ रही, आगे पढ़ने लगी, क्योंकि आप रोज फेल होंगे तो उधर से भी आएगा। तो इसको ठीक करना होगा। और दूसरा, सरकार का जो उस पर कंट्रोल शुरू होने वाला है। पहले उन्होंने कहा कि जो भी डिजिटल है ये अपना वो नियामक संस्था बनाए, तो उसमें तो खैर अच्छा किया लोगों ने कि वायद ने बना दिया मिलजुल के, और उसमें सारे लोग रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन अभी जो टेबल पे है वो अगर हमको लग रहा है कि देश सभा में गवर्नमेंट पास करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको मीडिया में यहाँ से चुनौती मिल रही है। क्योंकि ये मीडिया इसमें तमाम कमियों के बावजूद सच्चाई को ले आते हैं और उसको लोगों तक पहुंच भी रहा है, जिसको ये आप लोग महसूस करने लगे हैं कि इतना करोड़ों अरबों का जो इनका बड़ा मीडिया है वो बेकाम हो गया है। लेकिन ये लोग, आपने देखा होगा कि एक जो NI की है, जो हर चुनाव में मोदी जी का इंटरव्यू करती है, वो बड़ा सा इंटरव्यू का आता है, दोनों वीडियो फार्म में उनको भी डांट पड़ी तो उन्होंने जो ये एप्पल फोन पे जो चलता है ना, इसमें पता नहीं कौन सी बातचीत होती है, उसमें बहुत सारे लोगों को जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं उनको बैठा के इसी पर बात पर चिंता व्यक्त कर रही थी। स्मिता प्रकाश नाम है उनका, कि ये हम लोग तो इतना कर रहे हैं, इसको कोई देख ही नहीं रहा है। और अजीत अंजुम का इतने लाख जा रहा है, रवीश कुमार का इतने लाख जा रहा है, इतने मिलियन जा रहा है, इसका हिस्सा ये लोग ही राय दे रहे हैं कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो कुछ न कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन अब फ्री इंटरनेट को तो कैसे बाधित करेंगे, क्योंकि और दूसरा एक और तीसरा तरह का मीडिया पैदा हुआ है, वो है तो एकदम अनगाइडेड मिसाइल की तरह, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है। गांव गांव में जो चैनल लेके खड़ा हो गया है, लोग माइक है, वो अकेले हैं, वही मीडिया अपना कोई संस्थान कुछ बना लिया उन्होंने, ला न्यूज, और वो आप देखेंगे गांव गांव में घूम रहे हैं, उनके पास माइक है और मोबाइल से उसी से शूट कर ले। लेकिन सबसे ज्यादा मौके पर पहुंचने वाले वही लोग हैं। और वो कई बार, जैसे आप देखेंगे कि जो सोनभद्र में बच्चों के मिड डे मील में कंकड़ वाला था, बहुत सारी ऐसी स्टोरी उन्होंने ही ब्रेक की है। वो जो उन्हीं गाँव पे गए और लेकर आए, फिर बाद में उसको उन्होंने विस्तारित किया, और वो सबसे ज़्यादा थ्रेट के शिकार है, क्योंकि कोई भी उनको गिरफ्तार करा देता है कि उसकी कोई उसके लिए कोई खड़ा भी नहीं होता है। बलिया में भी जो नकल वाला जो उन्होंने आउट किया था, उसमें भी ये लोग चपेट में आ गए। ये लोग इकलौते हैं एकदम, अपना एक कैमरा उनके पास और दौड़ते ढूंढते रहते हैं, और कहीं भी कोई खबर सुने मौके पहुंच जाते हैं। तो फुटेज तो वहाँ से ले आ रहे हैं, रियल फुटेज, क्योंकि ये मीडिया जो अल्टरनेटिव मीडिया के लोग तो पहुँच ही नहीं पा रहे, तो वहाँ से वो फुटेज ला रहे हैं, सीधे लोगों की बातचीत भी ला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एनालिसिस करने की और ये सब करने की क्षमता नहीं है। बस वो बेरोजगारी है, तो उनको लगता है कि ये रोजगार मिल जाए। उसमें बहुत सारे लोग तो केवल वसूली का धंधा चला रहे हैं, वो अलग किस्सा है। तो वो भी एक कैसे इसको किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक मीडिया की विश्वसनीयता के लिए चुनौती है। लेकिन अच्छा है कि उन्होंने इधर, मैंने देखा कि सारे ब्रेकिंग खबरें उन्होंने ही ब्रेक की। तो एक अल्टीमेट गवर्नमेंट का आने वाला है, इस पर रिपर्सन होगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल एक बड़ा प्रतिरोध बन गया है। तो लेकिन कोई ना कोई रास्ता हमको लगता है कि जिस तरह हर दमन के समय में कुछ न कुछ मीडिया, अभी से मुझे याद है कि जब अखबार थे तो बाबू विष्णुराव पराड़कर सबसे बड़े पत्रकार थे, खुद प्रेमचंद, और खुद पराड़कर जी वहाँ से निकालते थे अखबार बनारस से, और उन पर उस समय अंग्रेजी सरकार तो वो कर देती थी, जुर्माना लगा देती थी। उसमें हमारे गोरखपुर के जो संपादक थे स्वदेश के, वो 10 साल जेल में रहे। एक अखबार इलाहाबाद से निकलता था, उसमें तो हमेशा वो जेल ही में रहे, लेकिन अखबार निकलता रहा, बनारस में ही निकलता रहा। तो वो जब छापते थे
तो मशीन तो नहीं छाप सकते क्योंकि वो प्रिंटिंग मशीन कैप्चर हो जाएगा, जुर्माना उसको लग जाएगा। तो वो अपने अखबार का पता, कोतवाली का पता लिख देते थे और वो हाथ से डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसको लोग नहीं पकड़ पाए। इसी तरह से गोरखपुर का भी अखबार वो जो आज़ादी की लड़ाई में वो निकलता रहा, यहीं से कोलकाता से ही वो उग्र जी थे जो वहाँ पर गए थे, उन्होंने संपादन किया था और फिर वो जेल में। तो लोग अपनी आज़ादी के लिए, व्यक्ति की आज़ादी के लिए, लिखने की आज़ादी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते रहेंगे और कोई ना टेक्नोलॉजी भी कोई रास्ता देगी, मुझे लगता है। तो ये एक अनवरत चलने वाली लड़ाई है, क्योंकि जब पहला अखबार शुरू हुआ था तब भी यही समस्या आई थी। तब अंग्रेज वहाँ से जेम्स सिटी गजट ने निकाला था और उसने कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी पूरी कहानी सुनी था। वो अंग्रेज कम था, अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन उसके अंदर करप्शन हो रहा था तो उसको देखा नहीं जा रहा था। तो उसने यही कहा कि मैं जो देख रहा हूँ उसको मैं सबको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक अखबार निकालने जा रहा हूँ। और हाथ से लिख कर उसने एक जगह चिपका दिया। फिर उसके ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया, अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार किया और उसको निर्वासित किया। वहाँ से पत्रकारिता की शुरुआत होती है और अब यहाँ तक आ रही है, तो लगातार जारी है, गिरफ्तारी भी है, निर्वासित भी। अभी एक राहुल पंडिता के साथ हुआ है, जो बड़े रिपोर्टर थे और बस्तर पर रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने एक मुठभेड़ के बारे में एक हिंदू पे रिपोर्ट लिखी, उस पर एक IPS ने मानहानि का मुकदमा किया और हिंदू अखबार ही पीछे हट गया, उस रिपोर्ट को ऑन नहीं कर रहा। और किसी कोर्ट से आदेश हुए, असीला भिजते हैं, तो कहाँ से देंगे राहुल पंडिता? तो ये सब भी होगी, बड़े अखबार ऑन नहीं कर रहा, अपनी ही रिपोर्ट फ्रंट पेज पे छापी, सबसे स्टाफ रिपोर्टर थे, उनकी रिपोर्ट को ऑन नहीं कर रहा। तो ये मुझे लगता है कि ये लोग अपने ये हिमाकत करते रहेंगे और सच के लिए, ट्रूथ के लिए, जैसे गौरी रंगेश ने कहा ना कि वो सच के लिए लड़ाई लोग लड़ते रहेंगे, तो वो निकालते रहेंगे अपने तरीके से। इतिहास में भी है और आगे भी कोई ना कोई रास्ता लोग निकालते रहेंगे, क्योंकि ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग भी नहीं सोच रहे थे कि जब हमने अखबार छोड़ा था तो अगले दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा करेंगे क्या। तो तुम तो यही समझ लो कि एक वेबसाइट निकाल लीजिए और शुरू कर दीजिए, उसको शुरू कर दिया। अब यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, आगे कुछ और स्पेस आ सकता है। और यही एक सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रतिरोध खड़ा हो गया, क्योंकि आज लोग जो बात कर रहे हैं ये तो सोचना ही होगा कि हमारी बात वहाँ तक पहुँची है तभी तो बात कर पा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक ये पहुँचाने में हम कामयाब हैं और आगे भी कोई रास्ता होगा, लेकिन अभी से कहना मुश्किल है कि क्या होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में यूपी में एक खबर पढ़ा था कि मतलब घर पूरे बन नहीं पा रहे थे, चार दीवार बना के फिर स्टॉप कर दे रहे थे और फंड्स नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट। लेकिन दूसरे दिन प्राइवेट लोग पहुंच रहे थे लोन्स देने के लिए। So people were being asked to take loans to complete those houses जो प्रधानमंत्री योजना आवास के अकॉर्डिंग उसके मतलब पूरे हाउस मिलना चाहिए। So ये आपने देखा आपने। और दूसरी बात ये है कि अयोध्या और गोरखपुर तो समझ में आ रहे हैं, बनारस में इतने चेंज के कारण क्या है, स्पेसिफिकली बनारस में? बनारस में भी जो ओवरऑल जो यूपी का एक पूरा जनता का जो मूड है ना, वो हर जगह बदला है। और बनारस में पूरा एक, जैसे अभी आप देखेंगे कि रिजल्ट, यूपी के रिजल्ट के आने के बाद ये सारे मीडिया और ये लोग कह रहे थे कि मोदी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं है, ये अपने लोकल MPs के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए रिजल्ट आया, कुछ संविधान का गलत नैरेटिव विपक्ष ने चला दिया। ये सच्चाई ये है कि मोदी और योगी दोनों की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई और बनारस भी इसका गवाह है। क्योंकि बनारस में भी जिस तरह से काम है ना, आप उन्होंने एक गाँव बोल दिया था, उस गांव की हालत पर रिपोर्ट आई, स्कूल ने किया और उनके रिपोर्टर जो उसकी संपादक है सुप्रिया शर्मा, उनके खिलाफ FIR करा दिया वहाँ के DM, क्योंकि उसकी असलियत सामने है। फिर वहाँ के बुनकरों की जो हालत है, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए वहाँ पे, सारे घाट जो मछुआरे जो है वो जो नैया चलाते थे उनकी जगह गुजराती बोट्स आ गए वहाँ पे। तो ये जो गुजरात को हर जगह खड़ा कर रहा है ना, उसके खिलाफ स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है। और ओवरऑल जो मोदी और योगी सरकार की जो नीतियां हैं
उसके खिलाफ एक बड़ा लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। उसका पूरा जो एक बनाया था ना वो उतर गया है, और जिसको कहते हैं बनाया था वो अब जनता के बीच नहीं है। इसलिए वहाँ पर अगर ये विपक्ष में कॉन्फिडेंस होता और ठीक से लड़ाई लड़ रही होती तो उनको हराया जा सकता था, ऐसा माहौल था वहाँ। लेकिन विपक्ष को खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको लग रहा था कि सीटें कम करने पर लड़ रहे थे। उनको हराने के लिए यूपी में लड़ते तो यूपी थोड़ा और इनको सीट दे देता और केवल मोदी को ही हरा देता तो खेला ही खत्म हो जाता। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये इन लोगों को कांग्रेस के अंदर, सपा के अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि जनता इतना बदलाव चाहती। जनता बदलाव की स्थिति बन गई थी, इसको ठीक ठीक लोग रियलाइज नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में 60 में मैं बता दूं कि जो पैसा मिल रहा है वो इतना कम है कि उसमें वो पूरा घर खड़ा नहीं हो सकता। 1,20,000 और फिर 2 लाख रुपया दूसरे में देते हैं। एक मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, तो अगर किसी को मिल जाता है तो उसको बनाने के लिए और पैसे लगाने पड़ते हैं। और इसका एक बहुत ही खराब पहलू है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है वो उनको जाके लोन दे रही हैं। वो लोन ले रहे हैं, उसके नाम पर, आवास के नाम पर तो नहीं दे सकते, वो एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में बकरी खरीदने के नाम पर, इसके नाम पर दे देते हैं। तो 30,000 से 50,000 दे सकते हैं, लेकिन वो लोग उस घर को बनाने में पैसा लगा दे रहे हैं और फिर वो कर्जा में डूब जा रहा है, फिर वो दोबारा कर्जा दे रहा है। तो मैंने अभी एक महिला ने सुसाइड कर लिया, जिसने घर बनाने के लिए ही वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से एक कर्जा लिया, फिर वो 6 जगह उसने कर्जे लिए, एक कर्जा चुकाने के लिए एक कर्जा, फिर उसने अपने सारे जेवर बेच दिए और फिर वो जब सारे तरफ से रास्ता बंद हो गए तो उसने सुसाइड कर लिया। और ये केवल आवास पाने वाले लोगों की कहानी नहीं है, जो लोग आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग भी सारे, आप ये पूरा हम लोग अब इधर नहीं जानता लेकिन पूरा यूपी बिहार हर गरीब जो है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जाल में फंस गया है। लगातार सुसाइड हो रही है और वो 30% से लेकर 40% तक इंटरेस्ट लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। तो और उनको रोज वो 10 दिन 3 दिन पर लेके हफ्ते दिन उसका वो ईएमआई देना पड़ता है। वो पूरा गैंग बना के उनके घर आ जाते हैं, उनको जब तक वो पैसा नहीं दे देते हैं निकलने नहीं देते हैं। तो काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है और ये योजना पूरी तरह से कि जो जिनको लग रहा है कि हमको मिलने वाला है वो इनसे लोन लेके घूस दे रहा है, रिश्वत दे रहा है कि 10,000 ले लो हमको आवास दिलवा दो। वो आवास भी नहीं मिला, कर्जे में भी डूबे और जिनको मिल गया उसको आधा बनाने में खर्चा हो गया, फिर उसको बनाने में कर्जा ले लिया। तो ये बड़ी कहानी है। मैं सिर्फ एक जगह की मैं थोड़ी, पूरा गांव कर्जे में डूबा था। उस गांव की सभी महिलाओं के पास कोई जेवर नहीं बचा था, सब गिरवी रख दिया, उसके बावजूद अभी कर्जा जारी है। ये चल रहा है। इस पर अभी कुछ डिमांड्स हमको इसको CPI-ML ने यूपी में 3-4 जगह एक बड़े प्रदर्शन किए हैं उन सारे लोगों को कि इनका सबका कर्जा माफ किया जाए, लेकिन और पार्टीज अभी नहीं उठा रहे हैं इस मुद्दे को। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, उठाना चाहिए सबको। मेरा जो सवाल है, पिछले चुनाव में जो स्टार्ट मतलब हम लोगों ने देखा है यूपी में, एक तो है अमेठी जहाँ पे कांग्रेस का गौर थी एक टाइम पे, फिर स्मृति ईरानी आके खेल दिखा दिया, फिर इस साल उसका पूरा उल्टा ही आ गया। ये कैसे हो, उसका मुद्दा क्या था अमेठी में? दूसरा है पीलीभीत, जो हर साल में चर्चा में रहता है। पीलीभीत में कभी मनेका गांधी का इधर है उधर है ऐसा करके करके उन्होंने इतना साल तो जी लिया है, अभी क्या हाल है? मेनका गांधी तो इस बार हार गई, सुल्तानपुर से लड़ी थी और ये जीतती तो रिकॉर्ड होता उनके नाम की 9वीं बार वो जीतती और इतना लगातार जीतने का रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। लेकिन जिसने हराया वो 9 बार लगातार हारा हुआ था और वो गोरखपुर का था, वो एक निषाद नेता है रामभुलाल निषाद, जो इनके बारे में ये था कि उनको कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने हरा दिया इनको। पीलीभीत तो इस बार इनको टिकट नहीं मिला था मनोहर गांधी को, तो वहाँ तो जीत गई है भाजपा। और अमेठी में तो एरोगेंस जो था ना, कि मैं तो जहाँ जा रहा था लोग ये कह रहे थे कि एक जगह जरूर हार हो जाए, मतलब कम से कम स्मृति ईरानी हार जाए। इतना एरोगेंस था उनके बयानों को लेकर और वो जिस तरह से, मतलब उनके लिए बीजेपी ने उनको एक टारगेट दिया था कि राहुल गांधी कुछ बोलेगा तो तुरंत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके पास यही टारगेट था। और जिस भाषा में बोलती थी
उससे एक बहुत लोगों को नाराजगी थी कि इस तरह से मतलब भाषा में नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि अब तक लोग जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया पर उनकी हार का। राहुल गांधी को कहना पड़ा कि अब बस करिए। तो ये एरोगेंस था। और दूसरा था कि अमेठी कोई खास काम तो हुआ नहीं था, पैवेलियन नहीं था। लोगों को एक एहसास था कि हमने गलत निर्णय लिया, हरा दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी की इमेज भी नए तरीके से एक बनी है और वो नॉन कॉम्प्रोमाइज लीडर की, और पहला ऐसा लीडर भी जो केवल बीजेपी नहीं आरएसएस पे भी लगातार हमला कर रहा है। ये सब मिल के वहाँ पर, और ये बहुत अच्छा फैसला था इनका लड़ना वहाँ पे। इनसे लड़ने से और खुद अखिलेश के भी कन्नौज से लड़ने से इससे काफ़ी यूपी में, और ये आप जानिए कि बीजेपी को इसकी भनक आखिरी समय तक नहीं थी। ये स्ट्रेटजी बीजेपी माना जाता है कि मास्टर लोग हैं, सब चीज़ उनको पता रहता है, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से लड़ जाएंगे और वहाँ से किशोरी लाल जी लड़ जाएंगे और खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ जाएंगे, ये उनको नॉमिनेशन तक पता नहीं था। ये यूपी में बीजेपी का जो 26 सीट घटा गया, तो इसके लिए जो कारण आपने बोले हैं, तो उसमें जैसा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो कास्ट बेस्ड पार्टीज के लिए आम आदमी को जो डिसइल्यूशनमेंट है, ये सब जैसा है, तो बहुत सारी इकोनॉमिक रीजंस भी है उधर, जैसा बेरोजगारी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, जबरदस्ती से जमीन ले लेना। और ये तो अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये आ गया कि वाराणसी और अयोध्या में जो सारे लोकल स्मॉल ट्रेडर्स था उनका तो धंधा बंद हो गया। तो ये बड़ा इकोनॉमिक रीजंस बहुत है। तो अभी जो ये हमारे इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, इसमें तो कहा जाता है कि ये तो रिच और कैपिटलिस्ट इंडिया को रूरल और पुअर इंडिया का एक जवाब है। अब बंगाल में भी देखा कि कोई नहीं सोचा कि टीएमसी को इतना सारे सीट मिलेगा। तो अभी रिजल्ट आने के बाद सब कोई कह रहा है कि वो मेन रीजन है लकीर भंडार, सबको पास पैसा जा रहा है तो उसलिए सब सारे टीएमसी को वोट दे रहे हैं। तो हमको ये कहना है आपसे, ये आपका क्या सोच हम जानना चाहते हैं कि ये सारे इकोनॉमिक रीजंस को कोई भी पार्टी एड्रेस कर ले। मान ले कल बीजेपी की हर आदमी को, हर बेरोजगारी आदमी को जेब में पैसा डालना शुरू कर दिया, तो उनका जो बेरोजगारी का समस्या है उसको कुछ सॉल्व हुआ, तो वो लोग की तब भूल जाएगा कि इनका जो डिविजनिस्ट पॉलिटिक्स है ये, और सोच में नहीं आएगा, वो जाके बीजेपी को वोट देगा कि हमारे पास पैसा आ रहा है। ना कि आम आदमी को सोचने, ये अवेयरनेस भी आया है ये जो रिलीजियस डिविजन का जो पॉलिटिक्स, इसका जो सामाजिक डेंजर है, इसके बारे में भी कि उनका कुछ अवेयरनेस आया है। जो वोट का ये सिर्फ वो इकोनॉमिक रीजंस के नहीं है, उनके जो सोशल अवेयरनेस के भी एक रिफ्लेक्शन है ये रिजल्ट में। बिल्कुल आया है, क्योंकि मैंने जो भी रिपोर्ट लिखी थी उसमें इन सारे मुद्दों को उठाया था कि लोग अब अधिकार की बात ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि मजदूर भी ये कह रहा था कि अरे ये हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान ये करते हैं, इनके पास कोई रोजगार के लिए कोई नीति नहीं है, रोजगार दे नहीं सकते, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं कर सकते। सामान्य बात, जिस तरह से लोग, एक ठेला वाला हमसे कह रहा था कि एक दिन की सब्जी 150 रुपये पड़ जाती है और हम लोग कैसे कमाएं। फिर एक व्यक्ति ने जो कहा कि जो मैं कबीर मगर में ही था, वहाँ संत कबीर नगर एकेडमी बन रही है और 30 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है, तो उसको दिखाते हुए उसने कहा कि ये इतना जो बड़ा जो बन रहा है ना, वो उससे हम लोग को क्या मिला, हमारे लिए तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये जो बड़ा जो ये जिसके बहुत बड़े लोग चैंपियन हैं, सब कुछ बड़ा कर रहे हैं हर जगह, उससे लोगों को अब समझ में आ गया कि हमको इससे रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको नौकरियों में भर्ती जो करना था वो नहीं कर रहे हैं, ये उसके जगह ये हमको लड़ाए रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम अयोध्या, ये बात लोग बोल रहे थे, इसको रजिस्टर भी किया है। तो ये चेतना तो आई है, लेकिन इस पर मेरा कहना है कि और काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी राजनीतिक दल यूपी में उतना काम इस पर कर नहीं रहे। बेरोजगारी पिछले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था, लेकिन मुझे याद है कि वहाँ के सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने, खासकर लेफ्ट के जितने यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने एक मोर्चा बनाया था पिछले इलेक्शन के पहले,
और उन्होंने कहा कि हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ कैंपेन करेंगे। उसमें कांग्रेस को, फिर सपा को, बसपा को, सबको बुलाया, लेकिन ये सभी लीडर किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। और लेफ्ट के लोग में भी कुछ लोगों में मैं देख रहा था कि उसको लेकर कोई गर्मजोशी नहीं है कि अरे कोई सुनता नहीं है, 10 लोग भी नहीं आते हैं, 20 लोग भी नहीं आते हैं। तो वो इस मुद्दों पर रिगरस तरीके से आंदोलन करना, बात करते रहना, ये अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कत हो सकती है कि फिर कोई एक बड़ा भ्रमजाल भाजपा बुने और उसमें लोग फंस जाए। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस होती रही तो निकाल ले जाएंगे, क्योंकि एक बार लोग निकल जाते हैं तो फिर उनकी चेतना तो बढ़ी हुई है, तो फिर वापस तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये काम निरंतर करना होगा, इस पर काम नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी भले इतनी सीट जीत गई, लेकिन उसने कोई काम विपक्ष का वहाँ सड़क पे नहीं किया। वो सिर्फ एक पीडीएफ फॉर्मुलेशन हुआ और पूरा एक जो पोलराइजेशन हो गया, एंटी बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोट करना ही था, वो अपने मुद्दों के साथ, उसको सभा फायदा मिला। लेकिन सबसे बड़ी फोर्स तो वही है, पॉलिटिकल फोर्स, अब कांग्रेस भी। लेकिन अगर जनता के मुद्दों पर इन लोगों ने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर कोई स्ट्रगल नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते हैं लोग, अभी भी ये हालत है, ट्वीट कर देंगे, कुछ बयान दे देंगे, लेकिन जो लोग मार खा रहे हैं, जो लोग उजाड़े जा रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। और नौजवानों के साथ तो एकदम इतनी आत्महत्याएं हुई नौजवानों की, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से लेके इतना ज़्यादा निराशा में है वहाँ पर नौजवान कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। हर महीने आत्महत्या की खबरें आ रही है नौजवानों, लेकिन इसको ठीक ढंग से ये लोग अभी भी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर नहीं हुआ, थोड़ा नागरिक समाज इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अभी भी बहुत कम कर रहा है। तो हमारे जो सारे जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स का जो पार्टीज है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ज्यादातर आदमी, आम आदमी में जगाने के लिए ना, बिल्कुल निरंतर काम करना होगा, निरंतर काम। बहुत बहुत धन्यवाद।